Harshit, it's over to you. Please. Right, sir. So cutting the conversation a little short, which we can take up at the end of the session, I officially welcome our speaker for the day, CA Avinash Gupta ji. And I welcome CA Dinesh Kumar Jain ji, Secretary CIRC and ex-officio member of the Dehradun Managing Committee of CIRC of ICI. I also have the Chairman CA Vimal Kishore sir and Secretary CA Rajesh Gupta ji with us for this session today. The participants are slowly growing, and it's pleasing to see that the third session on this online platform during the COVID scenario is seeing a lot of positive response from our members, junior, senior, my colleagues, all of them, and a lot of students have also shown response in the two separate sessions held by the Dehradun branch for the students of the ICI. Without much ado, I'd like to take the session officially head. These are unprecedented times. I mean, things have been so different and so valiant that we never saw this happening. For me, we've read in the history, we've heard about pandemics and epidemics. Well, it's something that we are seeing ourselves today. The session for today is Impact of Tax Ordinance March 2020 on Direct Taxes. Well, this particular ordinance was released by the Government of India as a support, which a lot of people around the country and almost across the globe who had stakes in India were expecting from the government, in accordance with many other countries, to bring in some relaxation, bring in some positive when the sentiments of the market are completely down. The tax ordinance, which came in March 2020, was much expected. It brought in itself a lot of extension, some relaxation, and we have a very, very distinguished guest, a speaker with us, C. Avinash Gupta ji, who will be taking the session ahead. Before introducing him and asking him to take up the session, I would request CA Dinesh Kumar Jain ji, Secretary CIRC, who is here with us, to briefly address all the gathering and give his blessings for us to take this session ahead. Please. Thank you very much, Harshit ji. CA Vimal Kishore ji, Chairman Dehradun branch, CA Rajneesh ji, Vice Chairman Dehradun branch, C Rajesh Gupta ji, Secretary Dehradun branch, C Rajat Sharma ji, ex-Chairman Dehradun branch, CA Jasmeet ji, Treasurer, Harshit ji, Sikasa Chairman, CA Avinash Gupta ji, Speaker of today's program, and members of Dehradun branch. It's a great pleasure. हम आप लोग जो मिल रहे हैं, इट्स अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. शायद कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग इस तरह मिले होंगे या इस तरह से हम मिलेंगे. जब मैं देहरादून आया था तब सोच अलग थी. जब देहरादून ब्रांच का मुझे एक्स ऑफिसियो अपॉइंट किया गया, आई वाज वेरी हैप्पी. तो देहरादून अगर देहरादून का अगर एक्स ऑफिसियो हो गया तो कम से कम ये जो एक साल है ये तो शानदार फीलिंग होगी, और फीलिंग है नो डाउट. अब ये यकीन करें कि अगर हम वर्चुअल मोड में हैं तो फील तो वही हो रही है कि मैं देहरादून का पार्ट हूँ और देहरादून का पार्ट हमेशा रहना चाहूंगा. सर, दो तीन बातें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि तो इस जो पेंडेमिक सिचुएशन हमारे साथ आ गई है, सर इसको लेके ज्यादा पैनिक ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज देख रहे हैं कि सरकार के लिए हम केवल एक नंबर हैं, लेकिन हमारी फैमिली के लिए हम सब कुछ हैं. सर मैं इसमें दो चीज शेयर करना चाहूंगा कि या तो हमारे प्रैक्टिस को 15 साल, 20 साल या 25 साल हो गए. अगर हम 20 साल या 25 साल के प्रैक्टिस के बाद हमारी फैमिली को 6 महीने में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो सर मेरे ख्याल से अब तक जो काम किया वो भी किसी काम का नहीं, और आगे भी काम करके क्या कर लेंगे. और यदि हम 2, 3, 4 साल, 5 साल के यंग प्रैक्टिशनर हैं तो मेरे ख्याल से अभी इतना पैनिक होने की आवश्यकता है ही नहीं. अभी तो लाइफ पड़ी है पूरी काम करने के लिए. तो दोनों सिचुएशन में पैनिक ना हो. इस पेंडेमिक ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खोल दी है. आज हमारा टॉपिक हालांकि इनकम टैक्स का है, और इनकम टैक्स हमारा कोर प्रैक्टिस का जो एरिया है वो था, है और रहेगा. लेकिन आप इसके साथ जो दूसरे एरियाज है आप उनको भी ढूंढे. फाइनेंसिंग उनसे एक एरिया है, फॉरेंसिक ऑडिट उनमें से एक एरिया है. आजकल बहुत सारा अकाउंटिंग का काम जो पहले शायद बहुत कम आ रहा था वो और बढ़ने वाला है. जो फॉरेन कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पर हमारे डे नाइट का डिफरेंस होता है, वहां डे होता है या नाइट वहां डे होता है, तो वहां से काफी काम हमारे यहाँ पर शिफ्ट होगा.
इस कोविड दौरान में ये भी देख चुके हैं कि काफी लोग चाइना से कटने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की बहुत सारी फैक्ट्रीज, वहां के बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे यहाँ शिफ्ट होने वाली है। तो बट नेचुरली आगे आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल है। सिर्फ हमको इस वक्त को बहुत धैर्य, बहुत संयम, बहुत साहस के साथ निकालना है। एक और चीज, हमको हमारे सीए होने पे हमेशा गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ पे ग्रो करता है। बाकी सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो क्लाइंट की तकलीफ पे ग्रो करते हैं, लेकिन सिर्फ हम ऐसे हैं जो क्लाइंट की ग्रोथ पे ग्रो करते हैं। अगर हमारा क्लाइंट ग्रो करेगा, हमारा क्लाइंट कंटिन्यू रहेगा, हमारा क्लाइंट ग्रो करेगा, हमारी फीस भी ग्रो करेगी। तो हम किसी भी दूसरे प्रोफेशन से हमेशा ऊपर थे, ऊपर हैं और ऊपर रहेंगे। इस भावना को अपने साथ रखिए। जब आप इस भावना को साथ रखेंगे तो आपको अपने आप को प्राउड फील होगा अपने इस प्रोफेशन के ऊपर। वन मोर थिंग, जहां पर भी ये जो नया कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ भी चुके हैं, काफी समझ भी चुके हैं, सर इसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करें, और करना ही पड़ेगा, कोशिश भी नहीं, हम वी हैव टू फॉलो इट, क्योंकि ये हमारी जान है। इसी की वजह से एक सीए का नाम है। मोदी जी ने भी कहा था कि सीए के नाम के ऊपर दुनिया रिलाई करती है, और उस नाम को हमने आज तक मेंटेन रखा और उसको नाम को हम आगे भी मेंटेन रखेंगे उसको। एक और चीज सर, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को आप पॉजिटिव रख पाएंगे। यदि आप खुद नेगेटिव हो तो किसी और को पॉजिटिविटी आप दे नहीं सकते। शायद ये इस कोविड का एक बहुत बेहतरीन इलाज भी है कि आप अपने, आपकी जो इम्यूनिटी है ना, जो खाने पीने की चीजें उनसे तो आएगी, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस है, उससे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी और जनरेट होगी। अगर कभी भी आपको कुछ तकलीफ फील हो, आपको लगे कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो 2 लाइन हमेशा मैं गुनगुनाता हूं। इसके साथ मैं अपने आप को स्टॉप भी करूंगा कि यूं तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। जय हिंद, जय आईसीआई। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dinesh sir. Thank you, Dinesh sir, for some lovely words and very encouraging and positive words. आजकल के टाइम में ये पॉजिटिविटी ही चाहिए जो मिसिंग है और धीरे धीरे बाहर जाती जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। विद दैट आई वुड आल्सो मेंशन, जहाँ पॉजिटिविटी की बात हो रही है, द देहरादून वेदर हैज बीन काइंड इनफ। शायद इसीलिए हमारी वीडियो भी इस वक्त डार्क है कि घर में बिजली जा चुकी है क्योंकि बारिश आ चुकी है। It's as simple as that. It's raining heavily, it's pouring, and I'm sitting right I'm next feeling that. So welcome all the members. Thank you for sparing your Saturday afternoon for all of us. We believe that this will be a very beneficial session for all of you. The speaker over here has been really distinguished. I'll quickly introduce him to all of you. C. Avinash Gupta ji is a fellow member of the Institute of the Chartered Accountants of India. He is a graduate from the Shri Ram College of Commerce, Delhi University. He is a law graduate and completed his LLM in International Taxation from Vienna University, Austria, Europe. He has authored a number of books on international taxation and transfer pricing. He has been elected to the NIRC of the ICAI for the period of 2019-22. He is currently serving as the chairman for the Direct Tax Committee of NIRC of ICAI. He has been nominated as YIN India representative for a period of 2 years for International Fiscal Association, India branch. This is a Netherlands-based body specialization in tax and international dealing. He has delivered more than 900 lectures at national and international level. He is a visiting faculty at the National Academy of Direct Taxes, Nagpur, DTRTI, Shri Ram College of Commerce, ICAI, ICSI, ICWI, and so on, so many. Recent experience of his was from a chairman who was attending the certificate course by the ICAI, where he was one of the faculty members and was really encouraging and enlightening and insightful. Sir, it is a pleasure to have you with us. We really wish we had hosted you at Dehradun in this beautiful weather when the monsoon is slowly coming in. But for now, please accept our e-invite and our virtual invite and warm. Please, sir, take the session ahead and welcome all our members, please. Thank you. So, thank you, Harshit ji. Sri Vimal Kishore ji, Chairman of Dehradun branch. Rajesh ji, the Secretary of the branch. Pulkit ji, Harshit ji, and my council colleague from Central Region, Secretary of CIRC, Dinesh ji, and members of Dehradun branch. Good evening on this
evening where you are having beautiful rain in Dehradun. So don't worry. In Delhi also we are soon having rain. So my weather outside from my office is looking really good. So at any time I feel that we are also having the blessing of the God for raining. But these days you want to invite me there. I love to come to Dehradun, but I think your government will not allow me to visit there because of the pandemic situation and getting worse day by day in Delhi and Mumbai. And we are having now everywhere in Delhi we can see the cases going and increasing every day in day out. So that our family will also not allowed. Our family will also not allowed. Sir, family will also not allow. I agree. So actually, sorry for the late joining of the session for 5 minutes because I was on another session where we have a discussion on Corona by the Corona Warriors. So I have to attend that session. Then I just completed and joined the session. So today the topic given to me is the ordinance that have been brought by the government for the purpose of extension of various dates and time, which have been there in the month of March itself. And for your information, whatever I am dealing with it, it is all old, which you might have known everything. But next week or maybe in the end of June, we will have another ordinance whereby this 30th June time limit for certain things may further be extended. So that is a discussion which is going on. But the final, because whatever finance minister have announced in the 20 lakh package during that time, so no ordinance, no notification have come for any of the announcement. So for incorporating all those announcements, there will be a next ordinance or whatever way notification would be there soon in the time comes. So we are expecting it that it will come in the last week of this month, because all the dates are extended till 30th of June, and now we need further extension of the date. So that's why this new ordinance will come soon. But now let's discuss about the earlier ordinance which have come. So we have already known that that there are changes from the budget 2020 which have converted into the Finance Act 2020, and the changes are effective from 1st of April 2020. So I'm not dealing with those subjects, but if you have any query, you can raise the question and ask there and then. Next we have an ordinance which have been brought in during the time lockdown 1, and during this time of lockdown there is a problem with respect of many things, like Vivad Se Vishwas scheme is getting over on 31st of March. There is a due date of 148 notices. There is a due date of filing of return. There are many other due dates which will fall during that period of lockdown 1. So during that time, so the ordinance is being brought by the government. And what this government says? So government says any date which is specified in an act or notified or prescribed. So या तो कोई भी डेट आपकी प्रिस्क्राइब हुई है, कोई भी नोटिफाई हुई है, या कोई भी स्पेसिफाई है. सो स्पेसिफाई मतलब कहां पे? इन दी एक्ट. कौन से एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट में, बेनामी एक्ट में, आपका जो ब्लैक मनी एक्ट है उसमें कोई स्पेसिफाई है, इक्वलाइजेशन लेवी का जो फाइनेंस एक्ट है उसमें कोई स्पेसिफाई हुई है, कोई बीटीटी एक्ट में स्पेसिफाई हुई है, सीटीटी एक्ट में स्पेसिफाई हुई है. तो कोई भी डेट जो 20 मार्च 2020 के बाद पड़ती है और 29 जून 2020 तक है. सो एनी स्पेसिफाइड डेट और एनी प्रिस्क्राइब्ड डेट व्हिच लाइज between 20th March 2020 till 29th June 2020, all those dates have been extended to 30th June. So कोई भी डेट अगर आपकी कोई ड्यू डेट मान लीजिए 31 मार्च की थी, तो that date have automatically been extended to 30th of June. Any date which is levying on, let's say 15th of June, that is also extended to 30th of June. तो जितनी भी डेटें थी वो सारी की सारी डेट, ड्यू डेट जो 20 मार्च के बाद थी और 29 जून से पहले थी या इस पीरियड के बीच में थी, वो एक्सटेंड कर दी गई टू 30th ऑफ जून. अब ये आया कि ड्यू डेट किस चीज की? क्या टैक्स की ड्यू डेट भी एक्सटेंड कर दी गई, डिपॉजिट ऑफ टैक्स की? आंसर इज नो. तो ड्यू डेट किस चीज की एक्सटेंड की गई? पहला, कोई भी इफ एनी नोटिस इज टू बी इशू, अगर कोई भी नोटिस इशू करना था और उस नोटिस इशू करने की ड्यू डेट 20 मार्च के बाद पड़ रही थी,
तो वो नोटिस जो है 30 जून तक इशू कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सो अगर आपको कोई भी रिटर्न फाइल करनी थी, सो फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज July, September and November, but belated return can be filed till 31st of March. 31st March is the due date of filing the belated return. So this due date is after 20th of March. So this due date of filing of return is also been extended to 30th of June. I have filed the return on time, but I want to revise the return. So revised return is to be filed for assessment year 1920 because abhi act mein provision aa gaya कि revised return can be filed only during the assessment year itself. So because of that, the revised return for the assessment year 1920 has to be filed till 31st March 2020. So that is also a due date. So this due date have also been extended. Intimation of anything. So if 143(1) or any other intimation under the act is to be given to the SSC till 31st of March, so that due date is also been extended to 30th June. तो किसी भी तरह की कोई इंटीमेशन देनी हो, कोई आपको 264 का ऑर्डर देना हो, कोई और अप्रूवल का ऑर्डर हो, आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था and that registration of trust under section 12AA is pending and the due date of the last date of approval of that registration is, let's say, 31st of March or 30th of April or 30th of May, whatever is the time during that period. So that is also been extended. However, trust के अंदर एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है because of the amendment that I will take it later. कि जो ट्रस्ट के पेंडिंग रजिस्ट्रेशन थे उनको कैसे करेंगे वो मैं एक बाद में आपको बताऊंगा. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इस तरह की कोई भी ड्यू डेट अप्रूवल के ऑर्डर की है, कोई आपने एप्लीकेशन फाइल करी थी और उस एप्लीकेशन फाइल करने का जो अप्रूवल ऑर्डर है वो अगर 20 मार्च के बाद अगर पेंडिंग था या 20 मार्च के बाद आना था, तो उस केस में वो ड्यू डेट भी आपकी 30 तारीख को एक्सटेंड हो गई. आपने कोई अपील फाइल करनी है, सो देयर इज अ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील आइदर एसएससी साइड और रेवेन्यू साइड. बोथ अपील तो हम भी फाइल कर सकते हैं, एसएससी भी फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है. हाउएवर वी फाइल इट बिफोर सीआईटी, आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. डिपार्टमेंट फाइल्स इट बिफोर आईटीएटी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली. सीआईटी अपील में वो कर नहीं सकता, आपको पता ही है. So in those cases also, when the due date of filing of appeal is between 20th of March until 29th of June, then that date is also been extended to 30th of June. वो भी हमारा क्या हो गया, 30th of June को वो हो गई. अगर कोई प्रोसीडिंग ही, if there is any proceeding which is pending at income tax authority, so कोई आपका 143(3) तो हो नहीं सकता because 143(3) की तो दिसंबर में ऑलरेडी डेट होगी. बट हो सकता है कोई कोर्ट का स्टे मिला हो और कोर्ट के स्टे के कारण उसका 3 महीने एक्सटेंड हो गया हो, और एनी अदर रीजन के कारण उसकी अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है या कोई और ऑर्डर पेंडिंग है और वो ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट जो है लेट्स से वो 31st ऑफ मार्च है, तो दैट ऑर्डर का जो टाइम पीरियड है दैट इज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30th ऑफ जून. तो अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, सो दैट ड्यू डेट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू दी 30th ऑफ जून. वो भी हमारा क्या हो गया, एक्सटेंड कर दिया गया. इसके अलावा अगर कोई और कंप्लायंस करना था हमें इस एक्ट में, वो कंप्लायंस की ड्यू डेट अगर 20th मार्च से लेकर 29th ऑफ जून के बीच में पड़ रही थी, तो दैट डेट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड. अब आते हैं सर, एक रियल टैक्स पेयर को चैप्टर 6 से की डिडक्शंस लेनी थी, तो दे वांट टू टेक अ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से. तो हम स्टार्ट करते हैं 80C से. तो 80C की इन्वेस्टमेंट करनी थी बिकॉज डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. वो डिडक्शन मुझे 31st ऑफ मार्च तक अगर मैं पेमेंट करता तो ही मिलती, अदरवाइज नहीं मिलेगी. और लॉकडाउन हो गया, द एसएससी कुड नॉट एबल टू डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उनको 3 महीने का जो है 30th जून तक का हमने उनको अलाउ किया कि दैट ऑल डिडक्शंस अंडर 80C कैन फर्दर बी क्लेम इफ द अमाउंट इज पेड टिल 30th ऑफ जून. और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली वी हैव कम अप विद द डिपार्टमेंट हैव नोटिफाइड द आईटीआर, रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म. इस बार तो ओरिजिनल आईटीआर फॉर्म 31st मार्च से पहले ही आ गए थे. So thanks to the writ petition filed by me in 2015, whereby they undertake 5 साल बाद सही, लेकिन अब कम से कम 31st मार्च से पहले तो फॉर्म लेके आ रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर्म्स में ये प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर मैंने मान लीजिए पीपीएफ में या कोई भी 80C के इंस्ट्रूमेंट में 31 मार्च के बाद में जमा किया, तो उसको फॉर्म में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो जो नए फॉर्म्स आए हैं उसके अंदर उन्होंने एक अलग से शेड्यूल बना दिया कि अगर आपको 80C क्लेम करनी है और आप 31st मार्च तक नहीं डिपॉजिट करा पाए, नहीं पेमेंट कर पाए,
तो इन दैट केस ऑल्सो आपको ये रिवाइज शेड्यूल में एक नया शेड्यूल है जिसमें आप डिटेल भर दीजिए, आपको एटीसी मिल जाएगी। सिमिलरली आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराना है और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप नहीं दे पाए, तो उस केस में भी आपको जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अगर आप आगे 30 जून तक दे देते हो तो आपको ये डिडक्शन उस साल में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपने डोनेशन देनी है, आपने कोई एटीजी में डोनेशन दी है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, तो उस डोनेशन की भी जो ड्यू डेट थी वो 31st ऑफ मार्च थी, तो दैट ड्यू डेट हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। सो आपने अगर अप्रैल, मई और जून में किसी भी तरह की कोई डोनेशन दी है तो उस डोनेशन का बेनिफिट आप पिछले सालों में ले सकते हो। इसी के साथ ही क्योंकि हमने एटीजी की बात करी है तो देयर इज वन मोर क्लैरिफिकेशन व्हिच हैव कम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट मिलती है, तो द सेम स्टेटस इज आल्सो बीन गिवन टू पीएम केयर फंड, because it was asked or it was misrepresented or there was a confusion on this point ki whether PM care fund will entitle 100% deduction or not, but that have been very validly clarified by the board that it is equivalent to PM relief fund, 100% deduction without any limit, so that anybody who have contributed to PM care fund, they are entitled to do that. However, there is one question which is still there, that whether the deduction will be available only when there is a direct payment or it is a via payment also they will entitle. So for example, our institute have asked to contribute in the PM care fund. We have deposited the money to the CA institute and then CA institute have deposited 21 crore. So if let's say if Avinash Gupta deposited 1,000 rupees to the institute, so whether I will be entitled for PM care fund deduction under ATG or not, so that question is still there, which I believe soon we will have an answer to it also. And ideally we should get this deduction because it is only a biomedical, and institute is only a collecting agency who have collected the money and deposited to the institute. However, there is a clarification for the employer that if the employer collected the money and employer deposited the amount in the PM relief fund or PM care fund, then employer is entitled to give the benefit of the same while issuing the form 16, and based on the declaration given by the employer in form 16, the benefit of ATG towards the PM care fund or PM relief fund will be allowed. So क्या clarification आई है? So for example, एक organization में 100 employees थे और 100 employees ने अपनी एक दिन की सैलरी PM केयर फंड में डोनेट करी। So किसी की सैलरी 1,000 रुपए होगी, किसी की सैलरी 2,000 रुपए होगी, किसी की 3,000 होगी। कंपनी ने या उस एम्प्लॉयर ने टोटल मिला के 50 लाख रुपए जमा कराए। अब उस 50 लाख का बेनिफिट वो कैसे दे सकता है? व्हाइल डूइंग दिस फॉर्म 16 ऑफ द एम्प्लॉइज, वो जितना जिस एम्प्लॉय से काटा उसके उसमें बेनिफिट दे देगा, देन इट इज अलाउड। सो इसके लिए ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दे दी है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग दिस कोविड विच वी हैव टू रियलाइज। नेक्स्ट सर, इसके अलावा हमारे कोई भी डिडक्शंस के चैप्टर में अगर कोई ड्यू डेट है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगा। अब सर जरा वापस चलते हैं, हम वापस चल के अब हम बात करते हैं कुछ ड्यू डेट्स हमारी एक्ट के सेक्शंस में लिखी गई हैं, उन ड्यू डेट्स का क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 54, 54F, 54EC एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सर एक एक समझ लेते हैं। सर पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल 54EC। सर 54EC क्या है? आप कोई भी लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी बेचिए और उसका 50 लाख रुपीस तक क्या करना है आपको, जो है NHAI के बॉन्ड, REC के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी बेची और हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 19th of March एंड आई फेल टू डिपॉजिट दैट अमाउंट टिल 19th of March, कुछ कोई रिलीफ नहीं है। But if the last date of purchasing that bonds is 21st of March, so then the time period is automatically extended to 30th of June. So इस 6 महीने का जो पीरियड हमें मिलता है, अगर if this 6 month period the due date falls within the bracket of 20th March till 29th of June, then in that case it is automatically extended to 30th of June itself. Now let's come back to 54 and 54F. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 54 का बेनिफिट, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ले ली, अब दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की मैं रजिस्ट्री नहीं करा पाया। सो मैंने एक प्रॉपर्टी पहले बेच दी, फरवरी में बेच दी, जनवरी में बेच दी, या लेट्स से अक्टूबर में बेच दी, नवंबर में बेच दी, और अब मेरे को जो है दूसरी हाउस प्रॉपर्टी लेनी थी और वो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी 31st मार्च तक लेनी थी।
So क्या ये डेट एक्सटेंड हो गई? Because 31st March is a, let's say, is a due date. So then this date is automatically extended to 30th of June. But अगर मेरी वो ड्यू डेट जो है वो 15 मार्च थी तो आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं। सिमिलरली उस 54 में लिखा हुआ है कि अगर आपको 2 साल का पीरियड में आपको नया परचेज करना होता है और 3 इयर्स के पीरियड में आपको कंस्ट्रक्शन करानी होती है, तो आपकी वो 2 साल का पीरियड या 3 साल का पीरियड अगर 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा था तो वो एक्सटेंड हो गया। तो दैट इज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड। सो मैंने अपना कैपिटल गेन 2 साल पहले हुआ था, मैंने कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया था पैसा और मुझे जो है 31 मार्च 2020 तक नए घर की रजिस्ट्री करानी थी, या मेरा पुराना जो घर था उसी को एक्सटेंशन करना था, उस पर कंस्ट्रक्शन करनी थी और वो कंस्ट्रक्शन मेरी जारी थी, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाई 31 मार्च 2020 तक। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस मनी और दिस अमाउंट यू कैन स्पेंड टिल 30th of June। आपकी अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है आप 30th जून तक रजिस्ट्री करा लीजिए, और आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन अधूरी रह गई तो 30 जून तक कंस्ट्रक्शन पूरी करा लीजिए। दैट टाइम लिमिट हैव ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड। अब ये फर्दर एक्सटेंड होगी या नहीं होगी which I do not know। वो जब नया ऑर्डिनेंस आएगा या नई नोटिफिकेशन आएगी then we will see कि क्या होगा। बट अभी तक के लॉ के हिसाब से जो अभी तक का ऑर्डिनेंस है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी ये जो टाइम लिमिट है ये 30th जून तक एक्सटेंड हो गई। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये जो 6 महीने में हमें कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा कराना था और मेरी जो 6 महीने की ड्यू डेट थी वो 25 मार्च को पूरी हो रही थी, तो क्या मेरी और मैंने पैसा जमा नहीं कराया, तो क्या दिस ड्यू डेट हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड? आंसर इज यस। So if a capital gain is you have undertaken a capital gain which is a long term capital gain from a house property and you have to deposit that amount within 6 months with the government under the capital gain scheme and that due date of that 6 month falls within that period, then this date is also being extended to 30th June। तो 54 में 6 महीने का पीरियड भी एक्सटेंड हो गया, 2 साल में जो हमें प्रॉपर्टी खरीदनी थी वो वाला पीरियड भी एक्सटेंड हो गया, और जो कंस्ट्रक्शन करनी थी 3 साल में वो वाला पीरियड भी एक्सटेंड हो गया। सो ऑल 3 पीरियड्स आर बीइंग एक्सटेंडेड अंडर सेक्शन 54 और 54F। तो ये वाले जितने सेक्शंस में अगर कोई भी ड्यू डेट बीच में आ रही थी तो दीज ड्यू डेट्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट। आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, आपका एसएससी उनका बेनिफिट ले सकता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट ऑन दिस। चलें सर आगे चलें, या अभी इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक द क्वेश्चन। विमल जी। राइट सर, वी हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड आवर मेंबर्स कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में या क्वेश्चन एंड आंसर में डाल सकते हैं। तो अगर जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है मैं आपको एक बार बता दूंगा। मेंबर्स इफ देयर इज क्वेश्चन प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स और क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज। थैंक यू। चलिए सर। So there is one more problem which is being faced by the SSCs under 10AA। So 10AA, I don't know whether in Dehradun we have special economic zones or not, but I believe you should have special economic zones। So in the special economic zones, the provision says that in the deduction under section 10AA will be allowed from the year in which the approval from the respective authority have been received and manufacturing have been started in that year। तो आपको जिस साल में अप्रूवल मिलेगी उसके बाद अगर आप जिस साल में मैन्युफैक्चरिंग पूरी फैसिलिटी स्टार्ट कर लोगे उस साल से आपको 10AA की डिडक्शन मिलनी शुरू होगी। अब मान लीजिए एक एसएससी ने अप्रूवल डाली थी और वो 31 मार्च तक नहीं आई, दैट अप्रूवल हैव कम इन लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो क्या उसको लास्ट ईयर 10AA मिलेगा? आंसर इज यस। So with that, if that due date have not been expired, that due date have expired which is 31st March, और उस दिन तक उसने वो अप्रूवल नहीं मिली थी बट उसको 30 जून से पहले मिल गई, तो इट इज डीम्ड कि उसको लास्ट ईयर में मिली और लास्ट ईयर के 10AA मिलेगा। सिमिलरली अप्रूवल मिल गई थी, अप्रूवल जनवरी में ही आ गई थी, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी थी 25 मार्च से, जो वो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो और उसने 30 जून से पहले कर ली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको डिडक्शन 10AA की एज इट इज मिलेगी, बिकॉज वो 31 मार्च की जो लिमिट थी वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी 30 जून के लिए। तो 10AA अगर कोई क्लेम कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, अप्रूवल नहीं आई या मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर पाया टिल 31 मार्च, सो दैट 3 months रिलैक्सेशन इज आल्सो गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन आल्सो। तो ये वाला रिलैक्सेशन भी उसको दिया गया है। अब सर उन्होंने एक बात कही कि these extension is allowed only in respect of the due dates for all those purposes। अब सर कुछ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को भी दी गई, डिपार्टमेंट को 148 के नोटिस इशू करने थे, कब तक कर सकता था?
31 मार्च 2020, जो उस साल के असेसमेंट ईयर 13-14 के जो उसको करने थे नोटिस इशू, और सर 14-15 के, तो वो वाले जो नोटिस का ड्यू डेट था वो भी एक्सटेंड हो गई। 263 करना था, कमिश्नर को 2 साल का टाइम पीरियड था, और वो 2 साल का टाइम पीरियड अगर एक्सपायर नहीं हुआ, 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा था, जो 2 साल पहले असेसमेंट हुई थी सर वो मार्च में हुई थी, तो उसका 263 करने के लिए 2 साल का टाइम पीरियड होता है सीआईटी के पास। वो 2 साल का टाइम पीरियड 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा था। दैट टाइम पीरियड ऑफ 148, 263 एंड इवन 154, आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी थी 154 की, जो 6 महीने 6 months from the end of the month, that is expiring on 31st March. So all those period is also being extended to 30th of June. तो उनको 3 महीने फालतू मिल गए, तो 3 महीने उनको ज्यादा मिलेंगे किस काम के लिए? ये नोटिस इशू करने के लिए। अगर वो काम करेंगे, काम अगर डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगा तो ये उनको 3 महीने 3 पीरियड अब है। तो आपको 148 मुझे नहीं लगता किसी को भी आए हैं। I have not received a single notice of 148 in the month of either March or April, nor by way of a e-notice or by way of a hard copy receipt. But they are prepared that they will issue these notices till 30th of June, provided further extension नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये हो सकता है कि अब आपको जून के महीने में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको 148 के नोटिस देखने को मिल जाए, या 263 आपको आ जाए। तो ये टाइम पीरियड भी क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। नेक्स्ट सर, अब उन्होंने कहा सर कि हमने टाइम पीरियड जरूर एक्सटेंड किया है, बट हमने टैक्स पेमेंट एक्सटेंड नहीं करी। सो अगर कोई टैक्स पेमेंट इस पीरियड के ड्यूरेशन में आई, इफ देयर इज एनी टैक्स व्हिच हैव बीन ड्यू और देयर इज एनी लेवी व्हिच इज ड्यू टू बी पेड, तो लेवी वर्ड यूज किया उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। इक्वलाइजेशन लेवी जैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई ऑनलाइन किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हो, या अभी 1 अप्रैल से अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉरेन कंपनी है तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी देनी है। अगर उस केस में अगर कोई पेमेंट ड्यू है और वो ड्यू डेट जो है वो 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच में है, सर कौन कौन सी ड्यू डेट होंगी? लेट अस एनालाइज दिस। क्या कोई एडवांस टैक्स की डेट आएगी? सर 15 मार्च आ गई, कहाँ आएगी सर? है ही नहीं। So the due date for payment of advance tax is 15th of March. वो 15 मार्च से पहले हो चुकी है। अब अगले साल की ड्यू डेट आ सकती है। So for the present previous year 2021 assessment year 21-22, the due date is 15th of June. तो yes, एडवांस टैक्स की 15 जून की ड्यू डेट आ सकती है। कोई टीडीएस पेमेंट की डेट आ सकती है। मार्च का टीडीएस पेमेंट कब तक होना था? 30 अप्रैल तक होना था। अप्रैल का 7 जून तक, 7 मई तक होना था। मई का 7 जून तक होना था। तो ये वाली भी ड्यू डेट है। या कोई और टैक्स की कोई भी किसी भी तरह की अगर टीसीएस की ड्यू डेट हो सकती है। तो इफ देयर इज एनी ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्स, सो कोई टीडीएस की पेमेंट होनी थी, कोई इनकम टैक्स की पेमेंट होनी थी, कोई इंटरेस्ट और किसी चीज की पेमेंट होनी थी, तो उन सबको उन्होंने कहा पेमेंट की डेट डिले नहीं करी हमने। वी हैव नॉट डिलेड एनी डेट ऑफ इट इज हाउएवर the rate of interest charged for delay in payment, जो भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, और 12% नहीं लिखा हुआ सर, वो लिखा हुआ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और 1.5% फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 1% है तो 12% हो गई, और 1.5% है तो 18% रेट हो गया। तो उस रेट को दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 9%, या आप इसको कह सकते हो 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सो दैट डिले पेमेंट जो होगी, जो भी आपने डिले किया है पेमेंट का, अगर आपने मार्च का टीडीएस नहीं दिया और मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल को नहीं दिया आपके एसएससी ने, तो उसको इंस्टेड ऑफ 1.5% का इंटरेस्ट लगने के, उसको क्या लगेगा? पूरा उसको 0.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अब सर इसमें कुछ लोगों का एक इशू है। तो मान लीजिए मैंने मार्च में टीडीएस काटा और 30 अप्रैल को डिपॉजिट नहीं कराया, मान लीजिए 15 मई को डिपॉजिट कराया, सो आई हैव डिलेड इट फॉर 15 मंथ। अब सर इंटरेस्ट कितना लगेगा और किस रेट पे लगेगा और कितने महीनों का लगेगा? इंटरेस्ट विल बी लेविड फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। सो टीडीएस डिडक्टेड इज फॉर मार्च, अप्रैल और मई, एंड टिल द डेट द टैक्स टीडीएस इज पेड। जिस 15 मई को पे किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कितना लगेगा? 0.75% पर मंथ के हिसाब से लगेगा,
या अप्रैल और मई का 0.75% और मार्च का 1.5? So there are many people who are saying कि भाई मार्च का तो 1.5 ही लगेगा, बट अप्रैल मई का जो है वो 0.75. आंसर इज नो सर. 3 महीने का जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो 0.75% पर मंथ के हिसाब से आपको 3 महीने का देना है. आपने आपके एसएससी ने जो है अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया, 7 मई तक डिपॉजिट करना था, नहीं किया. लेट्स से उसने 15 मई को डिपॉजिट किया, 0.75% फॉर 2 मंथ्स. मई का टीडीएस था, जून में डिपॉजिट करना था, नहीं किया, 29 जून को करा, तो 2 महीने का 0.75% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट लगेगा. तो दैट इज व्हाट इज द लॉ. दिस इज तो जहां पे भी आपकी कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस थी और वो टैक्सेस अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किए, तो इंटरेस्ट रेट वुड बी 0.75% ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इन प्लेस ऑफ 1% और 1.5%. दोनों की जगह वो क्या हो जाएगा, 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट आपका लगेगा. जहां पे भी आपका कोई भी टैक्स ड्यू है उसके हिसाब से ले. अब सर एक क्वेश्चन आया कि एक प्रोफेशनल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा एक सीए साहब ने कि सर मेरा एडवांस टैक्स मैंने नहीं पे किया था, या मैंने जो पिछले साल का एडवांस टैक्स पे किया 15 मार्च तक वो कम पे किया. So I have deposited the advance tax. Let's say the liability to deposit the advance tax is 10 lakh rupees, but the SSC have deposited advance tax only up to rupees 8 lakh rupees. तो 2 लाख रुपए का उसने क्या किया, एडवांस टैक्स कम जमा किया. सर ठीक है सर, समझ में आया कि मैंने 10 करना था और 8 किया, तो 2 लाख रुपए का मैंने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया. अब मैं उसको मान लीजिए जून में जमा कराने चाहता हूं, तो मेरे पे क्या होगा, व्हाट विद द इम्प्लीकेशन. सर अगर मैं जून पे जमा कराने जाऊंगा तो 15 मार्च तक करना था, तो एक तो 234C लगेगा मार्च के महीने का, और 1 अप्रैल से लेकर जून तक जब भी मैं जमा करने जा रहा हूं 234B लगेगा. और अगर मैं ड्यू डेट तक नहीं करूंगा तो 234 ये तो बाद में लगेगा, 234 एक ही हम बात ही नहीं करेंगे. सो आपका जो अगर एडवांस टैक्स नहीं पेड है तो आपने 15 जून को नहीं कराया, तो आपको 234C देना है. उसकी ड्यू डेट क्योंकि इस पीरियड के बीच में नहीं पड़ती तो पूरा देना पड़ेगा. बट 234B कब से अप्लाई करता है, 1 अप्रैल 2020 से, विच इज विद इन दैट पीरियड. सो टैक्सेस ड्यू बिटवीन 20th of March till 29th of June. So 234B starts from 1st of April 2020, which is within that period. So 234B from 1st of April till 30th of June, instead of 1% per month, it will be 0.75% per month. So आपको 234B जो आपका एसएससी है उसको इन 3 महीनों के लिए 1% पर मंथ नहीं देना, 0.75% पर मंथ देना. मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि ये पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ, ये 30 जून ही रहा और एसएससी ने पेमेंट जो है वो जुलाई में करी. So instead of making the payment till 30th of June, if we have made the payment in July, तो क्या होगा, तो क्या इसको 3 महीने का 0.75% चार्ज करेंगे और जुलाई का 1% चार्ज करेंगे. तो आंसर इज पूरे पे 1% लगेगा, क्योंकि उसमें कहा गया है that reduced rate of 0.75% will be applicable if the period is between them and it is paid till 30th of June. अगर 30th of June तक आपने पेमेंट नहीं करी तो ये पीरियड जो 7.75% है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. फिर पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी एप्लीकेबल है. सो अगर किसी एसएससी का कोई डिफॉल्ट है तो उसको अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है 30 जून तक की, तो इसमें मैक्सिमम अगर कोई पेमेंट कर सकता है. आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज अ सैलरीड एम्प्लॉय और अ बिजनेसमैन और एसएमई और अ बिग कॉर्पोरेट, एवरीबडी इज आउट ऑफ कैश. So then in that case, but if we have to discharge his tax liability, if we can do that, then get it done before 30th of June. Otherwise ये क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट चला जाएगा. हो सकता है इस डेट को ही एक्सटेंड कर दे. देयर वाज अ डिस्कशन किया, हो सकता है 15 तारीख की जो ड्यू डेट है टैक्स की, इसी को भी डेफर कर सकते हैं वो. सो लेट अस सी क्या होता है. अभी एज ऑफ नाउ तो 30 जून तक हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी. वी हैव टू पे दैट अमाउंट to the credit of the central government, otherwise that benefit of 0.75% will not be applicable. तो वो आपके एसएससी को या आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो ये हो गया हमारा एडवांस टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, दैट आई हैव ऑलरेडी. वन मोर थिंग अबाउट टीडीएस. आपको पता है
कि अगर टीडीएस ड्यू डेट पे जमा नहीं किया जाए तो क्या होता है सर, देयर इज अ पेनल्टी। आपने डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया तो आपको क्या करेंगे, आपको पेनल्टी लगाएंगे इक्विवेलेंट अमाउंट की और साथ में जेल भेजा जाएगा। रिकवरी हो जाएगी, पेनल्टी लगेगी और जेल भेजा जाएगा। अब उन्होंने कहा कि अगर इस ड्यूरिंग दैट सिचुएशन और ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक पीरियड और 20th मार्च टिल 29th ऑफ जून अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया तो देयर इज अ डिफॉल्ट इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, बट सब्सिक्वेंटली आपने डिपॉजिट कर दिया 30 जून तक, 1 जुलाई को किया तो नहीं, 30 जून तक आपने उसको डिपॉजिट कर दिया, तो इन केसेस में आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नाम नहीं माना जाएगा और नहीं मानने के कारण आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी। सो नो प्रोसिक्यूशन विल बी लॉन्च अगेंस्ट एन एसएससी if we have failed to deposit the TDS or TCS within which falls due from 20th of March till 30th of June and he have deposited that amount along with the interest, तो उसके ऊपर हम किसी भी तरह की कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। अब हर्षित भाई कहते हैं कि भाई जनवरी का नहीं डिपॉजिट किया सर, हमने सोचा था कि 31 मार्च को कर देंगे डिपॉजिट। many companies do that। अगर उनकी ओडी लिमिट 18% 20% की अनसिक्योर्ड लोन मार्केट से 24% पे लिए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ जो है 12% के ऊपर काम हो जाता है या 18% इन सम केसेस होता है, तो मेनी कंपनीज आल्सो प्ले ऑन दिस कि भाई 31 मार्च को ही जमा करेंगे, तो क्या इनको बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। द ड्यू डेट इज 7th of February, आपने वो पीरियड से पहले है तो इसलिए आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। तो जेल में अपने लिए जो है अपने क्लाइंट के लिए कहो कि सेल बुक करा ले ताकि वहां पे उसको उसकी सुविधाएं मिलती रहे और कोरोना से वो बेचारा बचा रहे जेल में। चलिए सर आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ड्यू डेट्स के बारे में बता दिया, रिटर्न के बारे में बता दिया, रिटर्न फाइलिंग, रिवाइज रिटर्न, नोटिसेस 148 153 वगैरह सारे नोटिसेस के बारे में बता दिया, इंटीमेशंस के बारे में बता दिया, ऑर्डर्स के बारे में बता दिया। पेनल्टी ऑर्डर की जो लास्ट डेट है वैसे वो जून है, 30 जून है, तो 30 जून तक उन्हें वैसे भी करना था तो इसमें कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। बट यस अगर फर्दर एक्सटेंशन आती है तो इस वाले ऑर्डर का भी एक्सटेंड हो सकता है। अभी हमें नहीं मालूम, अभी वी डू नॉट हैव अ लॉ इन हैंड, बट ये हो सकता है। टैक्स पेमेंट की हमने आपको बता दिया कि अगर हम किसी भी तरह की कोई टैक्स पेमेंट करेंगे तो टैक्स पेमेंट के टाइम पे भी हमें वो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन विवाद से विश्वास की। अगर आप सबको पता है विवाद से विश्वास की में ये कहा गया था कि इफ यू हैव डिपॉजिट द टैक्स विद इन अप टू 31st March 2020, सो आपको जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका या तो 100% या 50%, और अगर वो सर्च सर्वे केसेस है तो 125% जो भी रेट है उसके ऊपर आपको देना है। अदरवाइज वो क्या होगा, 100 का 110% हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इंक्रीज रेट पे देना था अगले 3 महीने। दिस ऑर्डिनेंस सेज कि ये वाली जो डेट है 31 मार्च की, बिकॉज इट इज फॉल ड्यू ऑन 31st March एंड इट इज नॉट एन इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने सेपरेटली ऑर्डिनेंस में लिखा कि विवाद से विश्वास स्कीम की डेट 31st March से बढ़ा के 30th of June कर दी गई, सो दैट हैव बीन एक्सटेंडेड टू 30th of June। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है अब 30th जून तक होगी। फर्दर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि दैट डेट विल बी फर्दर इंक्रीज टू 31st of December। अब सर जरा यहाँ पे कंफ्यूजन है, सो देयर आर मेनी पीपल हु हैव अंडरस्टूड इट वेरी डिफरेंट। मैं आपको एग्जांपल से सर समझाता हूँ और आप इस बात को फिर समझेंगे। सर मेरे पास फोन आया जामनगर से, सर राजकोट चार्ज में, वहां पे एक सीआईटी साहब थे। जब आपको सबको पता है कि लॉकडाउन से जस्ट पहले डिपार्टमेंट वाज प्रेसिंग हार्ड कि आप फाइल करो, और बहुत सारे एसएससीज ने अपने सीएस के माध्यम से विवाद से विश्वास स्कीम में फाइल कर दी, और जैसे ही ऑर्डिनेंस आया वैसे ही सारे सीआईटी ने सबने काम बंद कर दिया, किसी ने कोई फाइल नहीं किया। उन्होंने कहा अब तो 30 जून होगी, बाद में देखेंगे। अब वहां पे एक सीआईटी साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन 2 के बाद ऑफिस खुला, मई के महीने में जितने भी फाइल थे वो सबको अप्रूव कर दिया। So all the applications filed by the CIT, उसके पास पावर है, he have a power. Applications are form 1 and 2 is being filed with the CIT and CIT has to approve it, और उन्होंने CIT साहब ने इसको form 3 इशू कर दिया। अब
बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर अब ये फॉर्म 3 इशू हो गया, लेट्स से 2 मई को हो गया, 3 मई को हो गया, 5 मई को हो गया, तो क्या पेमेंट ऑफ टैक्सेस 30 जून तक करनी है? आंसर इज नो। जिस दिन आपको फॉर्म 3 इशू हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर द एसएससी हैज टू मेक पेमेंट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। सिमिलरली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, शी हैव अनाउंस्ड दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड और विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 30th जून टू 31st ऑफ दिसंबर। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, या अब क्योंकि अभी लॉ तो है नहीं सर, देयर इज नो ऑर्डिनेंस, देयर इज नो रिटन नोटिफिकेशन, इट इज ओनली द स्पीच व्हाट इज बीन गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। तो पीपल आर सेइंग कि आपको एप्लीकेशन तो 30 जून तक फाइल करनी है, बट पेमेंट आप 31 दिसंबर तक कर सकते हो। आंसर इज नो। अगर आपने 30 जून को एप्लीकेशन फाइल कर दी और कमिश्नर ने उसे 1 जुलाई को अप्रूव कर दिया, तो 15 days from the receiving of form 3 which is 1st of July, 16 जुलाई तक आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, because according to the press conference the due date of filing have been increased from 30 June to 31st of December. So better you don't file it now, wait till December अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, ऑलरेडी डिडक्ट कर लिए हैं या टीडीएस में से डिडक्ट कर लिए थे, तो इमीडिएटली फाइल कर दो। सो बट स्टिल लेट अस वेट फॉर द एग्जैक्ट रूल टू कम। अभी एग्जैक्टली क्या ऑर्डिनेंस में आता है या नोटिफिकेशन में आता है, हो सकता है जो दूसरे प्रोफेशनल्स कह रहे हैं वो हो, बट मेरा अपना व्यू ये है कि जो वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 30 जून की डेट ही एक्सटेंड कर दी है 31st ऑफ दिसंबर तक। बट लेट अस वेट फॉर द ऑर्डिनेंस, लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि पेमेंट को नहीं किया उन्होंने। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है दैट ड्यू डेट ही एक्सटेंड होगी। तो लेट अस सी कि क्या होता है, बट वो जो भी हो, लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 3 पहले से आ गया है, इफ फॉर्म 1 और 2 जो हमने फाइल किया था विवाद से विश्वास वो अप्रूव हो गया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर प्लीज मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्स, अदरवाइज दिस विल बी डीम्ड टू बी एन इनवैलिड डिक्लेरेशन फाइल्ड अंडर दी विवाद से विश्वास स्कीम। तो आपकी जो डिक्लेरेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अप्रूव हो गया है तो फटाफट उसके 15 दिन में टैक्स पेमेंट कर दो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज विवाद से विश्वास स्कीम इज कंसर्न। चले सर आगे चलते हैं नेक्स्ट। So next relief come in case of the lower deduction of tax TDS cases which fall under 197. So ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ था। I don't know आपके यहाँ कितने होते हैं, but metros and bigger cities have lot of these certificates which are being issued to the SSCs for lower withholding of tax under section 194 to whatever 194 C, I, J, etc. And these certificates are being issued to the SSC under section 197 of the Act. तो हम फाइल करते हैं लोअर डिडक्शन का, और ये फाइलिंग जो है 30 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर शुरू हो जाती है। मतलब 1 अप्रैल 2020 की जो फाइलिंग थी, मतलब प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2020, दैट हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1st of March 2020 इटसेल्फ। तो बहुत सारे ऐसे एसएससीज थे जिन्होंने पिछले मार्च में, मतलब मार्च 2020 में ये सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर दी थी। बहुत सारे ऐसे एसएससीज थे जिन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन फाइल करी, बिकॉज नाउ दीज ऑल एप्लीकेशन हैव टू बी फाइल्ड ऑन द ऑनलाइन मोड। तो कोई प्राइवेट जाना ही नहीं था, तो उन्होंने घर बैठे बैठे या तो कर दिया, सीए भाई से करवा ली अपनी, तो वो हो गई। या कुछ ऐसे एसएससीज थे जिनको पिछली बार मिला हुआ था सर्टिफिकेट, बट लॉकडाउन के कारण वो अभी फाइल नहीं कर पाए। दे आर नॉट एबल टू फाइल दोज एप्लीकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इन तीनों केसेस के लिए उन्होंने ये कहा कि हम आपका क्या करते हैं, जो भी सर्टिफिकेट अगर आपको पिछले साल टीडीएस का लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट मिला हुआ था, सो इफ दैट सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू एन एसएससी, देन दैट वैलिडिटी ऑफ दैट सर्टिफिकेट इज एक्सटेंडेड फॉर 3 months। तो आपका जो पिछले साल का सर्टिफिकेट था वो 30 जून तक वैलिड होगा। जो भी रेट पिछले साल का था, जो भी पिछले साल का लोअर विथहोल्डिंग, मान लीजिए 194J का आपको 6% पे मिला हुआ था, या 194C का 0.5% पे मिला हुआ था, तो दैट रेट, व्हाटएवर रेट इज फर्दर एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट
3 months also. अब उन्होंने कहा कि क्या नाम है, राजेश जी ने कहा कि सर मेरा पिछले साल का सर्टिफिकेट जो था वो 40 लाख का था और 40 लाख तो मेरा पिछले साल ही पूरा हो गया. So that 40 lakhs have already been crossed in last year. कोई दिक्कत नहीं है सर. Whatever is the limit, that limit is extended to the current year. So जो भी वो लिमिट थी, वो जो मान लीजिए उन्होंने 40 लाख का लिया था, तो इस साल ये 3 महीने के लिए वो 40 लाख की लिमिट क्या कर दी उन्होंने, पूरी एक्सटेंड कर दी. सर 40 लाख का 1/4 नहीं मिलेगा, पूरे 40 लाख तक सेम रेट पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. अब सर इससे एक नई समस्या पैदा होगी. क्या होता है सर, कोई भी चीज अच्छे के लिए करो तो कुछ और प्रॉब्लम होती है. अब हमारे हर्षित जी ने कहा कि सर मैं एक नया सर्टिफिकेट फाइल करने जा रहा हूं. तो अब नया सर्टिफिकेट जो फाइल करने जा रहा हूं सर, अब इसमें ये बताओ सर, पिछले साल का मुझे 40 लाख का 194J का 4% पे सर्टिफिकेट मिला हुआ था. ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 3 months मैंने उस पार्टी को बिलिंग करी और उस पार्टी ने मुझे 20 लाख रुपए पे किए आफ्टर विदहोल्डिंग द टैक्स एट द रेट ऑफ 3% व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर लास्ट ईयर. इस साल में मेरी टोटल बिलिंग जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं उस एसएससी से, वो 50 लाख की कर रहा हूं. पिछले साल 40 थी, इस साल मैंने 50 कर रहा हूं. मैं उसका बड़ा अच्छा काम करता हूं, उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो ही इज हैप्पी एंड ही हैव इंक्रीज्ड द फीस फ्रॉम 40 lakhs to 50 lakhs. हर्षित जी हंस रहे हैं, कह रहे क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो. तो सर सपोज करने को कह रहा हूं, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि आप ऐसा सोचो. एक्चुअल में क्या होता है वो सब बात की बात है. सो इस केस में अब जो इन्होंने 50 लाख रुपीस प्रपोज किया, तो जो अब इन्होंने सर्टिफिकेट फाइल करना है, क्या वो 30 lakhs का फाइल करना है विच इज रिमेनिंग, क्योंकि 20 लाख तो इनको मिल गए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन. सो आंसर इज इट हैज टू फाइल द सर्टिफिकेट फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ 50 lakhs. तो जो इन 3 महीनों में जो पेमेंट आ जाएगी उस पेमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर लेना जब आप फर्दर सर्टिफिकेट आप क्या करोगे, फाइल करोगे. तो दैट सर्टिफिकेट हैव बीन इंक्रीज्ड, दैट एक्सटेंशन इज गिवन at the rate given in the last year for the period of 3 months only. तो वो 3 महीने के लिए आपको क्या मिला है, आपको एक्सटेंशन मिला है with fresh limits and the rate applicable for the last one. अब ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ईयर मेरे को 4% पे लोअर विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट मिला, मैंने 20 पार्टीज के लिए लिया था. फॉर द करंट ईयर आई नीड द सर्टिफिकेट फॉर एडिशनल 5 पार्टीज. तो 5 नई पार्टीज के लिए मुझे इशू करना है चाहिए था. तो उन्होंने एक प्रिस्क्राइब किया था, वो 20 मई तक हमें जमा करानी थी. वो एडिशनल पार्टीज की डिटेल उनको मेल पे भेजनी थी, बट वो अगर आप किसी ने भेज दी है तो उसको 30 तारीख तक उन्होंने अप्रूव कर दिया होगा. तो दे मस्ट हैव अप्रूव्ड इट. बट अगर किसी ने नहीं भेजी तो अब कुछ नहीं हो सकता. अब तो फ्रेश सर्टिफिकेट, आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी है, उसी का वो डिस्पोजल, दे हैव स्टार्टेड डूइंग द डिस्पोजल फॉर द लोअर विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट्स. तो ये भी है. सर अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो ये तो हो गया सर ऐसे लोग जिन्होंने फाइल करी है, बट हम इफ वी आर एट अ पेमेंट एंड दैट वी हैव टू पे टू दोस पीपल हु आर होल्डिंग दीस सर्टिफिकेट्स इन पास्ट. सो बेस्ड ऑन दोस नंबर्स वी कैन फाइल our TDS return with the same certificate number for the first quarter of the previous year 2021 also. So that period is, that facility is also given to the SSC. अब इसमें सर ऐसे भी कुछ SSC हो सकते हैं जिनको इसी साल का सर्टिफिकेट मिल गया होगा. So there are many SSC जिनको इस साल का भी सर्टिफिकेट, तो वो जब हम फर्स्ट क्वार्टर की TDS रिटर्न की यूटिलिटी भरने जाएंगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन करेंगे कि लास्ट ईयर के कौन सर्टिफिकेट के बेस पे किसका था और करंट ईयर के उस पे कैसे होगा. तो दैट वी विल सी व्हेन द यूटिलिटी विल कम फॉर फाइलिंग TDS रिटर्न्स ऑफ क्वार्टर 1. बट दैट फैसिलिटी और दैट बेनिफिट हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर टू ऑल द SSCs फॉर द फर्स्ट क्वार्टर टिल 30th of June. अब ये फर्दर एक्सटेंड होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट इतना ये इन्होंने कह दिया. नेक्स्ट सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है या एक इंपॉर्टेंट समस्या पैदा हो गई फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हु हैव फाइल्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA और 80G. अब सर मान लीजिए मेरे एसएससी ने ये जो 12AA था ये फाइल किया इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो नवंबर के महीने में उसने फाइल किया और ये अप्रूवल कब तक मिलनी थी, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 30 मई उसकी लास्ट डेट थी और 30 मई में उसने नहीं दिया. तो पहली बात तो ड्यू डेट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 30 जून एक्सटेंड हो गई. अब जब 30 जून पे आए तो हमें पता चला कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक अमेंडमेंट कर दी जहां पे 12AA का रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकता. अब नया सेक्शन आ गया 12AB.
जो नया सेक्शन आया उसमें क्या है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा 3 साल का, और उसके बाद फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पुरानी जितनी भी हमारी जो ट्रस्ट हैं उनको सबको क्या करना था, रीअप्लाई करना था, और ये रीअप्लाई का जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ये जो एक्सटेंशन जो इसमें रीअप्लाई करनी थी उसका टाइम पीरियड उन्होंने क्या कर दिया, नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया कि भाई अब जो काम अभी शुरू होना था वो काम अब कब से शुरू होगा, नवंबर से शुरू होगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिनका ड्यू डेट अब मई में था, अप्रैल में था या मार्च में था, उन सबका 30 जून को हो गया। अब 30 जून को जो अप्रूवल करे या होएगी वो 12AA में होगी या 12AB में होगी। इफ वी से 12AA में होगी तो 12AA डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज overridden by a new section 12AB, और 12AB की डेट क्या हुई, वो एक्सटेंड कर दी उन्होंने। So they have extended that date. So there is a practical problem which have come before the CIT exemptions, that if they need to approve 80G or 12AA cases of earlier year, then how they will do it, because the due date, the time limit of 12AB have been extended to October. तो वो एक्सटेंशन की वजह से जो है वो क्या होगा, वो है अभी उसके लिए क्लैरिफिकेशन बाकी है। तो वो कैसे एक्सटेंशन देंगे इसको, they will come to us in the next ordinance, उनमें कुछ ना कुछ उनको लाना पड़ेगा। बट अभी आपके लिए अगर आपका कोई एसएससी है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने कोई एप्लीकेशन फाइल कर रखी है और उसकी ड्यू डेट अगर इस ड्यूरेशन में थी, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो CIT exemptions are taking any adverse orders। तो कोई भी आपका कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं देने जा रहे, कोई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने नहीं जा रहे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर ही नहीं सकते, उनको खुद को ही नहीं मालूम कि कौन से सेक्शन में करें और कैसे करें। तो दे आर ऑल्सो वेटिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम TPL CBDT कि इसमें वो कैसे करें। लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा 30 जून तक, 30 जून के आसपास इसके लिए भी एक डिटेल क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। हो सकता है इसकी अलग से आ जाए, बिकॉज ये तो अगर मान लीजिए बोर्ड ने कुछ कहा तो ये तो 30 जून तक उनको करना पड़ेगा। तो बोर्ड में टेक अ व्यू कि सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दो, तो अगर वो हुआ तो 30 जून तक सबको अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के केस में एक ये प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट, अब सर अब मैं ये तो ऑर्डिनेंस की बात करी मैंने, और ऑर्डिनेंस के अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने वो आपको लगभग सारी चीजें बता दी। नाउ आई एम टेलिंग यू सर्टेन थिंग्स फॉर विच देयर इज ओनली अ प्रेस रिलीज, देयर इज नो अमेंडमेंट इन द एक्ट, देयर इज नो नोटिफिकेशन, देयर इज नो ऑर्डिनेंस फॉर दैट। दिस हैज टू कम इन टाइम्स टू कम। सो नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक में इसके लिए नोटिफिकेशन और ऑर्डिनेंस आएगा। ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। पहली अनाउंसमेंट है कि सर जो TDS के रेट्स थे वो सारे TDS रेट्स क्या कर दिए गए, उसमें 0.25% की छूट दे दी गई। तो 10% की जगह 7.5%, 2% की जगह 1.5%, जो है 25% रेट कम कर दी गई। सर इसके लिए प्रेस रिलीज इशू हुई है, कोई लीगल अमेंडमेंट नहीं हुई है। सो देयर इज नो अमेंडमेंट इन द लॉ कि अबाउट द टैक्स रेट्स। तो सिर्फ CBDT ने एक प्रेस रिलीज की है। ठीक है, हम मानते हैं कि जब ऑर्डिनेंस आएगा तो वो इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट आ जाएगा, और सारे लोग अभी रिवाइज रेट्स पे ही TDS काट रहे हैं, प्रोफेशनल का 7.5 ही काट रहे हैं। दैट इज ओके। मई 12 तारीख या 13 तारीख जिस दिन आया था उस दिन से है, दैट वी आर एप्रिशिएटिंग दैट। बट अगर हम लीगली बात करें तो लीगल कोई लॉ नहीं है आज के दिन में। जब तक कि अमेंडमेंट नहीं आता तब तक कोई लॉ नहीं है। तो ये एक TDS को लेकर। नेक्स्ट, असेसमेंट्स। सो ऑल असेसमेंट जो अभी हमारी करंट ईयर की चल रही थी, जो असेसमेंट रियल टाइम असेसमेंट हो रही है, उसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर। जो हमारे नेशनल असेसमेंट सेल और रीजनल असेसमेंट सेल से जो हमारी जो असेसमेंट्स होनी है या चल रही हैं, आपको बहुत सारे लोगों को नोटिस आज आ भी रहे हैं उसके, लॉकडाउन से पहले आए थे और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी आए, फिर उसको रोका गया। उन सब केसेस में द ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट वाज 30th of September. So that due date have been extended to 31st of December. So 3 महीने का एक्सटेंशन उन ड्यू डेट और जो रेगुलर असेसमेंट 143 की होंगी असेसमेंट सेल वाली, दैट हैव बीन एक्सटेंडेड टू 3 मंथ। और बाकी जो दिसंबर वाली है वो दिसंबर ही है, और जो मार्च वाली थी, जो मार्च 2020 में होती थी, उसको मार्च 21 में एक्सटेंड कर दिया गया। सर ये आपको जनरली समझ में नहीं आएगी ये क्यों किया गया, बट दीज असेसमेंट्स आर अंडर बेनामी लॉ एंड ब्लैक मनी एक्ट।
सो बेनामी लॉ और ब्लैक मनी एक्ट की जो असेसमेंट है, असेसमेंट की ड्यू डेट्स है वो दिसंबर नहीं है, वो मार्च होती है। सो उन्होंने कहा कि अगर बेनामी लॉ में और ब्लैक मनी एक्ट में अगर आपका कोई केस, आपके एसएससी का कोई केस चल रहा है जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, जो एक्सटेंड हो गई, कब हो गई, 30 जून तक हो गई, वो अब फर्दर एक्सटेंड होगी अगले साल 31 मार्च तक। तो उनको एक उन्होंने एक्सटेंशन दी है बाय वे ऑफ एन अनाउंसमेंट। बाकी अभी लॉ आएगा तो देखेंगे कि उसमें क्या होगा। जितने भी लोग थे, चाहे वो इंडिविजुअल थे, टैक्स ऑडिटेबल थे, नॉन ऑडिटेबल थे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 हैव बीन एक्सटेंडेड टू नवंबर। तो वो जो ड्यू डेट थी वो क्या कर दी गई, नवंबर एक्सटेंड कर दी गई बाय वे ऑफ अ अनाउंसमेंट इन दी प्रेस। तो वो सब चीजें क्या हुआ, वो प्रेस की अनाउंसमेंट से सिर्फ ये काम किया गया। तो ये ड्यू डेट भी आपकी एक्सटेंड करने का कहा गया। बाकी इसके ऊपर मैं ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक बार लॉ आने दीजिए, लेट अस सी। अब विवाद से विश्वास वाला भी मैंने आपको बता दिया 31 दिसंबर कर दिया गया। इसके अलावा जो है ये 12AB का जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसेस भी डिले कर दिया गया अक्टूबर तक। लेट अस सी व्हाट विल बी द लॉ व्हिच विल कम। अब इन्होंने जब ऑर्डिनेंस लाए थे तो इन्होंने ऑर्डिनेंस में 30 जून की जो पावर है, 30 जून और एनी अदर डेट, मतलब इनको फर्दर कोई ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं है। अब नाउ दे कैन डू इट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन आल्सो। तो कोई भी डेट एक्सटेंड करने के लिए वो बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब उसमें सारी डेट्स एक्सटेंड होंगी, कुछ डेट एक्सटेंड होंगी, दैट वी हैव टू सी दैट व्हाट हाउ इट विल कम एंड हाउ इन व्हाट फॉर्म इट विल कम। तो वो जैसे जैसे आएगा हम उसके हिसाब से उसको देख सकते हैं। वो जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज हाउ the extension of dates is being announced in this ordinance as well as in the press conference there. So now if we can open the floor for questions, so we can have a interaction with the participant if they can ask any particular question. Vimal जी, आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं सर। Avinash, Harshit, you have that dossier with you? Yeah, sir. I'll just open that up. Please give me a second. तो हर्षित, in the meantime, can I request the participants if they have any question to put it in the chat box, please? Yes, Vimal sir, you were saying something. हर्षित, जो हमने क्वेरीज ऑलरेडी दी थी वो मेरे ख्याल से एक एक करके आप रीड आउट कर लें अविनाश जी, देन मैं रीड आउट कर लेता हूँ बस रिजॉल्व। एंड इन द मीन टाइम एक बार चैट बॉक्स विमल सर आपको भी विजिबल है, तो जस्ट इन केस कोई क्वेरी आती है तो आप वहां से प्लीज टेक अप कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूं। श्योर राइट सर। So first of all, thank you for a very quick and insightful session in the sense that सब कुछ बिल्कुल समराइज्ड वे में और बहुत अच्छे से आपने बताया सबको। प्लस इसमें आई थिंक एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट ये है कि एक फॉलो अप सेशन इसका करना पड़ेगा जैसे भी एक नया ऑर्डिनेंस या रूल्स एक्चुअली आते हैं। तो सर क्वेरी नंबर 1 that was sent to you, section 54F of the act provides for deduction of capital gain on sale of capital asset provided the gain proceeds are invested for acquiring by way of construction or purchase a residential house within 3/2 years of sale of the original asset from which is thought to be exempted. The ordinance extends the time for purchase construction of new house if the same was due between 20th of March till 29th of June to 30th of June. In the case the assessee had purchased the house on 30th of March 2019, मतलब जो एक साल पहले परचेज करना था, he could have claimed the exemption due to this purchase on sale of house or any other asset under 54F, provided the sale deed was executed on 29th of March 2020. In view of the ordinance, such a time limit for the sale of the house also stand extended. ये आपने कुछ हद तक सर एड्रेस भी किया था, I think. But can you just quickly revisit this question, please? सर इसमें सर तीन चीजें थी। तीन चीजें में से मैंने 2 चीजें ऑलरेडी बता दी थी आपको, रेदर 4 चीजें थी, 4 में से 3 बता दिया। 6 महीने में इन्वेस्ट करना है वो डेट एक्सटेंड हो गई। 2 साल में कंस्ट्रक्ट करना है वो डेट भी एक्सटेंड हो गई। 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना है वो एक्सटेंड हो गई। 2 साल में खरीदना है वो डेट एक्सटेंड हो गई। बट ये इन्होंने अभी जो आपने एक नया सिचुएशन दिया विच इज अ पेक्यूलियर। सो सिचुएशन इज, लेट्स से मुझे 22 मार्च 2019 को मैंने कोई घर खरीदा। So I purchased a house property on 22nd of March 2019, and now I have to go for a registry of a new house within 1 year के लिए मुझे वो 21 मार्च या उससे पहले वो रजिस्ट्री करानी थी।
So तभी then only it will be treated as 1 year before, otherwise तो 1 year की ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब वो मैं रजिस्ट्री नहीं करा पाया, I failed to do it because of the lockdown. So क्या अब वो रजिस्ट्री अज्यूम करता हूं मैंने 12 जून को करा ली। Let's take an assumption कि जब उसने अनलॉक 1 हुआ तो अनलॉक 1 में I have gone for a registration, या 30 मई तक 30 जून तक कभी भी वो रजिस्ट्री मैंने करा ली। तो क्या 1 ईयर बिफोर वाला जो बेनिफिट है, अगर मान लीजिए मैंने 25 जून को कराई तो 1 ईयर बिफोर जो है वो 26 जून 2019 से शुरू होता है, तो क्या ये बेनिफिट मुझे 21 मार्च वाला मिल जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि सर कोई ड्यू डेट नहीं है, देयर इज नो ड्यू डेट इन दैट। सर इट इज रिवर्स कैलकुलेशन, जिस दिन आपने कोई कैपिटल गेन हुआ आपको उस दिन के 1 साल पहले, सर ड्यू डेट नहीं है ना, बाकियों में ड्यू डेट है कि 2 साल में ये करना है, 3 साल में ये करना है, 6 महीने में जमा कराना है, तो दैट इज द ड्यू डेट। 1 साल पहले की कोई ड्यू डेट नहीं है। तो ड्यू डेट नहीं होने के कारण, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जी वो क्योंकि मैंने 21 मार्च 2019 को बेच दिया था तो मुझे कैपिटल गेन होने की ड्यू डेट 20 मार्च थी। सो देयर इज नो ड्यू डेट इन्वॉल्वड इन इट। So because there is no due date involved in it, so it is, in my opinion, you will lose that benefit of 50. तो सर इसमें सर क्योंकि जिसने खरीद रखा है उसने तो नेचुरल है खरीद ही रखा है ऑलरेडी मार्च में, तो इज इट एडवाइजेबल कि हम एक बार क्लेम तो करें? हाँ सर, बिल्कुल करो सर, बिल्कुल करो क्लेम। सर देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, एंड आई थिंक अभी आपने बताया, आज से पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। So अभी जो नेक्स्ट ऑर्डिनेंस आएगा, I will let this know to the board also कि ये इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है, तो they might come with some clarification, but I'll try to get some clarification on this कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंशन दिलवाने की बात करेंगे। मेरा सर पॉइंट जो है इसमें थॉट प्रोसेस वो ये है कि ये 1 साल पहले की जो मुझे डिडक्शन मिलती है, मतलब मैं आज बेच रहा हूँ और 1 साल पहले तक का खरीदा हुआ मकान मुझे एग्जेम्पशन के लिए मिल जाता है, उसका रैशनल यही है कि पीपल दे प्लान देयर अफेयर, ये मैं चाहे उधार लेके भी खरीद लूं लेकिन कल को मेरा मकान बिक जाएगा। तो आई हैड प्लान्ड इट कि भाई मैं 21 मार्च को मैंने बेचा लेट से 2019 में, और मेरे लिए मेंटली ड्यू डेट, दो नॉट इन द एक्ट, मेरे लिए डेट थी कि उस डेट तक मैं बेच सकता हूं। उधार मत बोलो उधार मत बोलो, क्योंकि उधार लिया और आपका हाउसिंग लोन चल रहा है और आपने इस कैपिटल गेन को उस हाउसिंग लोन के रीपेमेंट पे करा दिया, एलिजिबल फॉर 54, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने अपने 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, मैंने 2 करोड़ का घर लेके 1 करोड़ 60 लाख का लोन ले लिया था, और आज की डेट में वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का लोन एज इट इज है, मैं 1 करोड़ का गेन करूंगा, 1 करोड़ का हाउसिंग लोन रीपे कर दूंगा, एलिजिबल फॉर 54, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम विल कम कि वो मार्च में लिया था घर 2 करोड़ का और 2 करोड़ रुपए का कैश में लिया था, और अब मेरा गेन हो गया, तो उस केस में उसको क्या करेंगे? तो दैट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से इसमें हम ऐसा कर देंगे, इसमें मेरे को लगता है कि हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए कि अगर एग्रीमेंट टू सेल पहले हो चुका था तो आई थिंक अलाउ करना चाहिए, बिकॉज आई हैव इट इज अ फोर्स मेजर जिसकी वजह से मैं रजिस्ट्री नहीं करा पाया। आपकी ऑफिस बनते मेरी कोई गलती थोड़ी थी, मैं तो कराना चाहता था। तो आई थिंक आई विल रिप्रेजेंट इट बिफोर द बोर्ड कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सर मैंने नहीं सोचा। सर मेरे पास ये एक्चुअली एक पोजीशन आई, somebody visited my office मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि ड्यू डेट नहीं है ये। नहीं ना, मैं ये जो आपने एंगल बताया, आई फुली अप्रिशिएट that this is something in favor of the revenue where they can say कि it is not a due date which stands extended. So I appreciate that, sir. चले हर्षित जी आगे चले। Right sir. Sir, before I go back to the document, हमारे पास chat box में सी रजनीश चंद सर ने एक क्वेरी डाली है। सर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Appeal is filed with the ITAT in May 2019 against assessment proceedings. The appeal was filed with the application of condonation of delay. The appeal is pending on 31st of January 2020. Is appeal valid for Vivad Se Vishwas scheme considering the same was filed late? Sir, this has been a hot topic of discussion in my limited knowledge and experience. Sir, please share your knowledge and opinion. Sir, मैं आपको अपना स्टैंड बता देता हूँ। सर मेरा पर्सनल स्टैंड ये है कि it should be valid. However, the other stand of the other professional, including our
Guruji Girish Ahuja ji that it is not valid. ठीक है sir, I have discussed this matter in the board and board said there are two options available. The first option would be, according to them also, it might not be a valid declaration. So they say you go to ITAT, you go to CIT or you go to High Court, Supreme Court, जहां पे भी आपकी अपील 31st January को pending है, but वो delay है. So you go to these appellate authorities and tell them to adjust your case or to give a declaration or give a judgment whether they accept the appeal with condonation or they condone the delay or they do not condone the delay. If they condone your delay, कि ठीक है जी आपकी जो है 2 दिन लेट थी, 10 दिन लेट थी, 20 दिन लेट थी और आपके वैलिड रीजन थे और मैं आपकी अपील अलाउ करता हूँ. CIT अपील में से नॉर्मली 6 महीने तक CIT अपील कर देता है, ITAT भी जेन्युइन रीजंस पे कर देता है. तो अगर आपकी अपील 2019 मई में फाइल्ड है, आप एक फाइल करके ITAT में जाएं, तो आप डिसीजन दे दो कि whether you accept my appeal or you do not accept my appeal. If the delay is being condoned even today, then it is a valid appeal as on 31st January 2020. उसमें कोई डाउट नहीं है. अब सेकंड सिचुएशन आई कि उन्होंने condonation दिया नहीं, they have failed to give condonation or they denied giving condonation, या they do not want to give any judgment. मैंने अपील फाइल की, उन्होंने कहा जी रेगुलर हियरिंग में आएगी तब बताएंगे. CIT अपील को बोला जी जब आपका केस की नोटिस आएगा तब बात करेंगे. So in those cases still it is a gray area where I requested the board to clarify by way of a circular on this विवाद से विश्वास scheme. तो वो उसको कर देंगे. In the due course they said we will do it, we will do an internal check and we will do it. But मैं आपको practically बता देता हूँ, practically department नॉर्मली इस तरह के केसेस को एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज दे वांट कि यार कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, तो कॉन्डोनेशन नॉर्मली कोर्स में हो भी जाते हैं. अगर मान लीजिए CIT ने नहीं किया तो ITAT कर देती है और रेफर बैक कर देती है, ITAT नहीं किया हाई कोर्ट में चले जाओ तो रेफर. तो नॉर्मली तो वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर हमारा एक अपीलेट फोरम अपील कम हो रही है तो दे आर रेडी टू डू इट. तो ये आप अपने कमिश्नर से भी बात कर सकते हैं, उनसे बात करके भी आप इसको अलाउ करा सकते हैं. बट लीगली जो मेरे को पॉइंट बोर्ड ने भी कहा है और हमारे जो डॉक्टर गिरीश आहूजा जी से भी मेरी डिस्कशन हुई इस पे, उनका भी यही कहना है कि जब तक की कॉन्डोनेशन अलाउ नहीं होगा तब तक 31 जनवरी को ये वैलिड अपील नहीं है. और बिकॉज ये वैलिड अपील नहीं है, हेंस आप विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं जा सकते. तो दिस इज द लीगल पार्ट एज ऑन डेट. कल CBDT कुछ और कह दे मेरे को नहीं मालूम, बट अगर उसने कॉन्डोन कर दिया तो वैलिड अपील है और आप इसको जो है स्कीम में जा सकते हो. मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जहां जहां आपके डिलेड अपील फाइल्ड है वहां एप्लीकेशन लगाओ और टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्डोनेशन आप उससे जजमेंट ले लो कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. नॉर्मली दे विल अलाउ यू. तो ये लीगल पार्ट मैंने बता दिया, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अलाउ होनी चाहिए. तो दिस इज व्हाट इज द अर्जेंट मैटर एंड बोर्ड विल कम ऑन दिस. सर ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने उनको बोला है तो वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर they will discuss it, the validity, legal part and other things, and then they will come with some kind of explanation or some kind of a brief about this particular part. Right, sir. Rajneesh sir has also mentioned in his comment letter that he has got verbal assurance from the income tax department that it will be valid. तो let's hope वो तो खुद चाहते हैं, कोई तो और टैक्स तो दे जाओ, बाद में पता नहीं क्या होगा. सर इसमें एक फॉलो अप क्वेरी और भी आई थी कि शुरू में तो वी वर रनिंग ऑन शॉर्ट ऑफ टाइम, कि बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम था फाइल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 1 और 2. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि ये 31 दिसंबर तक एक्सटेंडेड है. तो इन दैट केस व्हाट इज द क्रोनोलॉजी यू विल सजेस्ट कि क्या अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म 1 में ऑलरेडी फाइल कर दिया हुआ है या देना है? हर्षित जी टैक्स दिया हुआ है तो इमीडिएटली फाइल कर दो और देना है तो अभी वेट करो. ओके, तो पहले कंडोनेशन के लिए ही जाके फिर फाइल करें. हाँ जी. तो पहले सर सबसे पहले तो आप कंडोनेशन करा के एटलीस्ट ये अश्योरेंस तो ले लो कि मेरी जो मैं फॉर्म 1 और 2 कर रहा हूँ वो वैलिड है. राइट सर अगर आपको कंडोनेशन मिल गया फिर तो कोई आपको डिनाई कर ही नहीं सकता ना. अगर कंडोनेशन नहीं मिला तो अगर एक बार डिनाई होगी तो दिक्कत हो जाएगी. तो बेटर पहले कंडोनेशन ले लो और उसके बाद अब तो सर आपके देहरादून में ITAT की बेंच शुरू हो गई है. राइट सर. बेंच हैव बीन इनॉग्रेटेड. अब आपको दिल्ली थोड़ी आना है आप लोगों को,
अब आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे को फोन करने की और कहने की अविनाश भाई हमारा केस करा दो दिल्ली, अब तो आप खुद कर सकते हो। सर अब आप जो केस कराने देहरादून आएंगे तो ब्रांच आ जाइएगा, आई थिंक दैट विल बी माय रिक्वेस्ट। वो हमारे से रजत भाई बैठे हैं ना, देहरादून का नाम आता है तो रजत भाई के अलावा हमें कोई और याद नहीं आता। वो अगर मैं देहरादून आऊंगा और उनको पता चल गया मैं देहरादून आऊंगा और उनको नहीं बताया तो भी हमारी दिक्कत हो जाती है। नहीं sir, he is an inseparable part of the committee right now. He was serving the chairman just before this, so we will love to host you, sir. Coming on to the next query. Rajnish ji, I think I have answered your query and we internally sir उनको कहा गया है कि अब ऐसी अपील्स भी विवाद से विश्वास में निपटाओ। Right sir. चलिए सर, और आप 3 क्वेरी कह रहे थे सर? और नहीं सर, यही रजनीश सर की इसी में आई थी, बाकी सर वही डॉक्यूमेंट की क्वेरी है। चलिए सर। सर सेकंड क्वेरी क्विकली हम लेते हैं, सेक्शन 10AA की है जिसको आपने भी एक्सप्लेन किया था। इसको सर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये SEZ में बेसिकली 2 कंडीशन मेनली होते हैं कि आपका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए और आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, आपके पास एम्प्लॉय आ जाना चाहिए काम करने के लिए। सर अगर इन दोनों कंडीशन में से 31 मार्च को एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि मेरे पास एम्प्लॉय आ गए, दोनों ना हो सर, 30 जून एक्सटेंडेड। राइट सर, राइट सर। इसमें ना सर आए हैं, मैं थोड़ा सा सर इस पे बताना चाहूंगा। एक्चुअली जो सपोज मेरी बिल्डिंग है, इट्स एन IT कंपनी और मेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिल्डिंग है और वो 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, उसमें से 3 फ्लोर्स मेरे तैयार हैं। मेरा स्टाफ मूव कर गया। मेरी पहली कमर्शियल इनवॉइस 31 मार्च 2020 से पहले रेज भी हो गई। मैंने डेवलपमेंट कमिश्नर को इंटीमेट भी कर दिया। अब मैं जो सर्कुलर 14 है जो मैन पावर के लिए है उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मेरे पास है। तो कैन आई बी डिनाइड दी एग्जेम्पशन ओनली ऑन द ग्राउंड कि आपकी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं थी, मतलब 5 में से 3 फ्लोर मेरे चालू हैं, सब ठीक है, मतलब इफ समबडी इज टू डू इट, मैं शायद 30 जून तक बाकी की दोनों फ्लोर्स भी कंप्लीट कर लूंगा। बट अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 30 जून को अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन मांगू, बट उस केस में मेरा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं 31 मार्च को कर चुका हूँ 2020 में, तो 21 में मेरी एम्प्लॉय वाली कंडीशन फ्लाउट हो जाएगी। तो फॉर मी आई थिंक द सेफेस्ट इज कि क्योंकि मैंने कमर्शियल इनवॉइस भी रेज कर दी और मैंने स्टाफ भी हायर कर लिया, द ओनली वीक एरिया फॉर मी इज कि मेरी बिल्डिंग टोटलिटी में कंप्लीट नहीं है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि 5 में से 3 फ्लोर मेरे तैयार हैं, 2 मेरे शेल बने हुए हैं, फिनिशिंग चल रही है, एंड मे बी बाय 30 जून आई शुड बी एबल टू। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ विमल जी। सर मान लीजिए आपने एक देहरादून में होटल खोला और होटल की पूरी बिल्डिंग तैयार है, इंटीरियर्स भी हो चुके हैं, आपके 6 फ्लोर का होटल है, आपने 3 फ्लोर तो 31 मार्च से पहले खोल दिए, ठीक है, और 3 फ्लोर जो है आपको जो है किसी कारण से आप नहीं खोल पाए, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी या कुछ भी कारण था, सर डेप्रिसिएशन आपको डिनाई हो सकता है? जो 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर का डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन से वाले 3 सर? जो चालू कर दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर, यूज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। Going by the same logic, I need to see the judicial pronouncements also in this case, क्योंकि मैंने इस तरह का केस अभी तक कोई देखा नहीं है, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और जितने 2-4 केस मेरे को पता है उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस एक्सटेंशन में मत जाओ, do it on 31st March itself, or the partly completed building also you will be given 10AA। हाँ मिलेगा सर, nobody can deny this thing, मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू, बट फिर भी आप अगर इसका कोई और डिटेल में देखना है, कोई और फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो खाली बिल्डिंग का नहीं होगा सर, फिर वो कुछ और अदर चीजें भी हो सकती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही थी 5 फ्लोर की, आपने 3 फ्लोर बना के और काम चालू कर दिया, 2 फ्लोर रह गया, तो वो सारी चीजें जो है वो सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। बट अगर आपका 3 फ्लोर रेडी है, स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको 10AA मिलेगा, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मतलब रेवेन्यू कैन नॉट से कि आपका कंप्लीट नहीं है प्रोजेक्ट, नहीं बिकॉज़ दे से ना सर कंप्लीशन जो है वो बिल्डिंग से नहीं होता, कंप्लीशन होता है कमर्शियल एक्टिविटी से। सर अगर आपने जो कमर्शियल एक्टिविटी करनी थी वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज आप कर रहे हो, 3 फ्लोर से ही कर रहे हो, सर मैंने एक फ्लोर पे 100 लोगों की बजाय मैंने 150 लोग बिठा दिए, जब ऊपर की बनेगी तब 50 लोगों को शिफ्ट कर दूंगा। ठीक बात है। या मैं कह रहा हूँ सर बिल्डिंग पूरी 5 फ्लोर की तैयार थी, बट 31 मार्च तक सिर्फ 4 ही एम्प्लॉय थे, बट वो 4 एम्प्लॉय जो भी मुझे प्रोजेक्ट करना था वो पूरा कर रहे हैं। So can the benefit of this be denied? I don't think
कि इट कैन बी डिनाइड, तो आपको बेनिफिट 10AA का मिलेगा। कोई इसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई। राइट सर। तो सर इसमें आई थिंक कोविड वाला सिनेरियो का इतना महत्व है ही नहीं 30 जून वाला, इट इज मोर अबाउट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। So I think the speaker has very rightly explained. Sir, Mr. Sir C.A. Rajiv Sahni sir has also mentioned judgment जिसमें कि delayed filing में condonation grant कर दिया जाएगा. I think all of us can refer it. He's given the citation नहीं, also. सर ऐसा नहीं कहा सर, उन्होंने ये नहीं कहा कर दिया जाएगा। उन्होंने एक जजमेंट दी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिले फाइलिंग में जब तक कि कॉन्डोनेशन ग्रांट ना कर दी जाए तब तक वो एलिजिबल नहीं होगी, तो उन्होंने ये कहा है। तो आपने गलत उसको पढ़ा है। तो राजीव जी, मैं आपके बात से मानता हूं और आपका जो कहना है वो भी ठीक है, लेकिन है ना इंटेंशन ऑफ द लॉ नहीं है, तो दे मे कम अप विद काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन लेटर। नहीं है तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर, वो हमें कराना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड एंड दिस कंट्रोवर्सी। डिले या तो कंडोन करा लीजिए, नहीं डिले आप कंडोन कराते हैं तो आपकी जो है वो एलिजिबल नहीं मानी जाएगी, एलिजिबल अपील नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ विवाद से विश्वास। वैसे तो सर दिसंबर तक का टाइम हो गया, अब सारी अपीलें ऑटोमेटिकली आ जानी है। हमारे दिल्ली के अंदर तो जो हमने जनवरी 2020 में अपीलें फाइल करी वो भी सब हियरिंग पे आ गई हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की अपीलों का प्रेशर है उनके ऊपर कि डीमोनेटाइजेशन की अपीलें निपटाओ, तो इसलिए दिसंबर तक तो सारी अपीलों के डिसीजन भी आ जाएंगे कि वो आपके फेवर में हो रहे हैं या अगेंस्ट में हो रहे हैं। तो इसलिए एक्ट यही कहता है कि कंडोनेशन लेना जरूरी है, बट आपका ये ओपिनियन है कि बोर्ड का कोई गाइडलाइन आ सकता है जिसमें वो इसको भी अलाउ करें, चाहे वो पेंडिंग हो कंडोनेशन की एक्सेप्टेंस। राइट सर। Moving to query number 3 which was sent to you earlier, the quantum appeal filed by the assessee is pending before the ITAT. Pursuant to a favorable order by CIT appeals, the AO has already issued a show cause notice for imposition of penalty, and the same is getting. सर, आपकी अपील ITAT में पेंडिंग है और CIT अपील का फेवरेबल ऑर्डर है, तो इट मींस इट इज अ डिपार्टमेंट अपील। यस सर, डिपार्ट सर नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है सर बेसिकली CIT अपील्स ने रेवेन्यू फेवरेबल ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से AO ने जो है शो कॉज पेनल्टी इनिशिएट कर दी है और वो टाइम बार्ड हो रही है सर 30 जून को। इन व्यू ऑफ द अबव, is it advisable to file the declaration under विवाद से विश्वास before 30th June 2020 and claim immunity from penalty? Also, what will happen consequence in both the situation, that is if appellant applies before 30th June or after that? सर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. There is no difference at all. Whether you go before 30th June or after 30th June doesn't matter. The only thing is that if you file the विवाद से विश्वास before 30th June, then penalty is leviable. So it is not yet levied, it is leviable. And when you file the declaration after 30th June, then the penalty is already levied. In both the case, whether leviable or levied, if you pay the quantum appeal main demand disputed tax, then penalty, if leviable, will not be levied. If already levied, will not is null and void. So दोनों केसेस में कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि जब पेनल्टी लेवी कर दी अगर उसने, तो 30 डेज में वो आपको कहेगा कि जमा कराओ टैक्स, सो यू हैव टू डिपॉजिट द टैक्स ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, और नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लूंगा। सो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट उसमें भी हम लोग क्या करते हैं दिल्ली में, हम वी विल फाइल अ लेटर विद देम कि दैट वी आर इंटेंडेड टू गो फॉर अ विवाद से विश्वास स्कीम अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन for the quantum appeal which is pending before ITAT or wherever it is. So kindly allow us time till the statutory time to file the application under विवाद to विश्वास is pending. तो उसके बेसिस पे वो हमें stay of demand दे देते हैं till that time. तो जब तक वो स्टे मिल जाएगा फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी से रिलेटेड है जो डिमोनेटाइजेशन के केसेस हुए हैं, क्या उस केस में आपको लगता है 30 जून के बाद प्रेसिंग दोबारा शुरू होगी डिमांड के लिए जो पेंडिंग है? सर अभी 30 जून तो आने दो, फिर देखते हैं।
Right, sir. There's a panelist who has यहाँ mentioned. पे तो डिपार्टमेंट खुलता सुबह 10 बजे 11 बजे ऑफिसर आते हैं, 11:30 बजे न्यूज आ जाती है डिपार्टमेंट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया जी? इस फ्लोर पे एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया इसलिए बिल्डिंग सील हो गई। उस पे उसके उस ऑफिसर के घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव मिल गया इसलिए बिल्डिंग सील हो गई। वो एक ऑफिसर आया जी उसका टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए बिल्डिंग सील हो गई। तो एक दिन खुलता है 2 दिन सील रहता है डिपार्टमेंट। तो Right, लेट अस सी क्या होता है अभी तो ऑफिसर्स भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं सारे। Right, sir. Sir, CA Divyanshu ने लिखा है, if one has applied for Vivad Se Vishwas before lockdown, that time he has funds, but when the order form 3 is received, he does not left a fund due to lockdown reason. Will he be able to take benefit of request the CIT for late deposit of tax? Sir, there is no provision in the law whereby CIT or any other officer for the timing, मतलब चेयरमैन CBDT भी 15 दिन का टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकता। सो वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन होगा तो सबके लिए होगा या किसी के लिए नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे एक मुद्दा जो मैं डिस्कस पहले नहीं करना चाह रहा था, बट अगेन इट इज डिस्प्यूटेड मैटर। द व्यू इज कि सर मान लो मैंने 15 दिन में नहीं जमा कराया, so what will happen? My application under विवाद से विश्वास become invalid। तो मेरी अगर एप्लीकेशन इनवैलिड हो गई तो अपील एज इट इज रहेगी, यही होगा सर। सर वेदर देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन कि मैं दोबारा नहीं फाइल कर सकता? यस सर, मैं दिसंबर में आके दोबारा फाइल कर दूंगा। कोई सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। सर स्कीम में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट, मान लीजिए इस केस में मैंने 15 दिन में टैक्स नहीं भी जमा कराया तो इनवैलिड हो जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इनवैलिड हो भी गई तो मेरी अपील वैलिड है, अपील चलती रहेगी। और अगर उसके बाद दोबारा भी जाना होगा तो आई बिलीव आई मे गो फॉर अनदर एप्लीकेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। सो मैंने ये बात भी उनको बताई है। वो कहते नहीं जी दोबारा नहीं कर सकते। मैं कहा सर कहाँ रिस्ट्रिक्शन है पूरी स्कीम में? मतलब मुझे तो नहीं मिली, हो सकता है कहीं हो, बट मुझे कहीं नहीं मिली कि क्या मैं एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या दोबारा नहीं कर सकता? सर एप्लीकेशन किसी भी कारण से रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन जब मेरे को मॉडिफाई करने का राइट है तो रिजेक्शन का भी उत्तर हो सकता है मैंने अपील नंबर गलत लिखा है इसलिए उसने रिजेक्ट कर दी सीआईटी साहब ने मेरी एप्लीकेशन, तो क्या मैं दोबारा फाइल नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो मतलब दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल गलत अनेक्शर भर दिया आपने, गलत आपने डिटेल भर दी, गलत अनेक्शर भर दिया। अगर इनवैलिड एप्लीकेशन होगी तो दोबारा तो कर ही सकता हूं। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। तो मैंने ये राजकोट वाले जो मेरे सीए फ्रेंड्स थे, मैंने उनको यही कहा था भाई अगर आपका पैसे नहीं है मत जमा कराओ, बाद में नवंबर में देखेंगे क्या होता है। Right, sir. Right, sir. So the next query again, rate of deposit of capital gain account scheme. That is the due date of filing of return. सर 6 महीने का है सर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पहली बात तो आपको 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर कराना होता है। सर ड्यू डेट वाला कहां से आ गया? राइट सर। जो आपका अगर कैपिटल गेन हो चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 6 महीने का पीरियड, अगर इस पीरियड के बीच में आ रहा है तो एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ये रिटर्न वाला मेरे को रिटर्न वाला कहां से आ गया है? सब मेरे ख्याल ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है बॉन्ड्स में जो होता है सर 54 EC के वो 6 महीने होता है। आई थिंक जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में है दैट इज लिंक्ड टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर वो हाँ ठीक है सही है सर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जब आपकी एक्सटेंड हो गई तो वो उसी से लिंक हो जाएगा सर। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कैपिटल गेन स्कीम में नहीं इन्वेस्ट किया तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे उस दिन तक अगर आप वो कर लेते हो, हाउस प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हो तो भी आपको एग्जम्पशन है। इवन इफ इट इज अ बिलेटेड रिटर्न देन आल्सो देयर इज एन एग्जम्पशन। तो सर वो सर मान लीजिए ये जो ड्यू डेट नवंबर की हुई है ये अगले साल नवंबर हो जाए, इट विल आल्सो गेट एक्सटेंड। तो वो तो ड्यू डेट से लिंक्ड है ना सर, उसका इस पीरियड से कोई लिंक ही नहीं है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होगी तो वो पीरियड अपने आप एक्सटेंड होता रहेगा। राइट सर, आप समझे सर? तो उसका और इस पीरियड का कोई लिंक नहीं है, वो तो ड्यू डेट से लिंक्ड है सीधी सीधी। वैसे तो सर 31 जुलाई की ड्यू डेट है सबको। अब काय का लॉकडाउन हो रहा है, अब तो सब कुछ खुला हुआ है तो पीपल कैन गो एंड डू इट। बट स्टिल ठीक है, ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई तो ये डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। दैट इज दिस इज व्हाट इज देयर। तो उसमें कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है। नवंबर का अगर फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा तो वो और फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी, because it is not linked with the date, it is linked with the due date of filing of return of income। तो 139(1) में अगर एक्सटेंशन होगी तो ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है। अब ऐसे आप कहोगे जी टैक्स ऑडिट भी एक्सटेंड हो गई क्या? यार हो ही गई। It has to be filed 30 days before the due date of filing of return. If the due date of 30th
September is extended to 30th of November, then the tax audit is also extended to 30th of October. Right, sir. Sir, due date of tax audit से related next query है कि Form 10 CCB is also required to be uploaded. और सर क्योंकि उसका क्या ड्यू डेट 30th नवंबर होगा या अक्टूबर होगा सर, जो टैक्स ऑडिट वाली 10 CCB सर, 80IC वगैरह के लिए होता है, वही है 10 CCB, 80IC yes, और sir, 80IC yes, सर, yes, वो 30 days बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके 30 days बिफोर ये फॉर्म फाइल करना है आपको. सो अगर वो ड्यू डेट क्योंकि आपकी नवंबर एक्सटेंड हो गई तो 30th अक्टूबर तक आपको करना है. Sir, last query in the document sent to you. I will also request panelists कि अगर इतने में आपके पास कोई query हो, please इसको डाल दें, वरना this will be the last query for today. Sir, a society registered under section 12AA having its office in Dehradun has been claiming exemption under section 11. In respect of assessment year 2017-18 and 18-19, Form 10 was filed belatedly due to technical/other reasons. The exemption was denied on this ground because the form was filed late. Subsequently, CBDT issued a circular authorizing CIT exemption to condone the delay in filing of Form 10 on case-to-case basis. पिछले साल आ गया था सर. The application for condonation has been filed before the jurisdictional CIT exemption, तो देहरादून के केस में लखनऊ का पड़ता है. He has fixed personal hearing at Lucknow on 19th of June 2020. और सर ये real fact है, ये हो रहा है. हियरिंग क्यों कर रही है? हियरिंग की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो उनको कहा गया था कि आंख बंद करके बस कर दो. सर वो हियरिंग दो भी दे रहे हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. Is it in order for him to fix a case for personal hearing at this time when all modes of transport are barred and COVID situation is happening? Does the ordinance provide any relief in this situation? जिसका क्या बोलवाना चाहते हो सर? सर कुछ अच्छा सा बोल दीजिए सर. सर देखिए, legally sir there is no restriction, पहली बात तो. So if we talk about legal, yes, he can call anybody, any SSC for any application filed before him. So as far as law is concerned, he is not going beyond the power of the law. However, when we go about the intent of the law, then I believe this is wrong. And the circular issued by CBDT is very clear that whatever Form 10 filed late during that period, there are problem in the income tax website also. Because of that, many trusts are not able to do it on time. So in those cases, CIT will have to approve it and give the benefit. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 100% केसेस में या सारे मेजॉरिटी केसेस में आपको बुलाया जा रहा है, आपके एसएससी को बुलाया जा रहा है और अननेसेसरी हरेसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसमें एक हरेसमेंट तो बुलाने की हो गई कि देहरादून से लखनऊ जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा और कुछ चल नहीं रहा, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप देहरादून ब्रांच के लेवल पे या कोई और एसोसिएशन के लेवल पे या एसएससी के लेवल पे you please write a letter to Chief Commissioner exemption in Delhi because CIT Lucknow is under CCIT Delhi. तो आप CCIT Delhi को आप एक फॉर्मल लेटर लिखिए और लेटर लिख के आप उसमें सिंपल रिक्वेस्ट कीजिए कि in this during this time you please allow us to represent the case on a electronic mode. आप ये कहोगे कि क्यों बुला रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा. आप ये कहो जी इलेक्ट्रॉनिकली मांगो ना, क्या डेटा चाहिए, You ask the data electronically, तो उससे मुझे लगता है कि वो चीजें सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक इंस्ट्रक्शन कैसे पास होगा. तो you write a letter, either the SSC should write a letter or an association should write a letter to CCIT Delhi in this case. और कोई solution नहीं है सर इसका. Right, sir. I think it's time that hot topic for CIT exemption. सर अब शायद वो चेंज हो गया है, अब शायद नहीं, अब वो चेंज हो गया, बाकी आगे देखते हैं सर क्या होता है. तो वो वहाँ पे मौसम बदल चुका है. ITAT के बेंच की मैं पहले दिन की हियरिंग में गया था तो वहाँ पे ITAT के बेंच ने ही कहा था, देहरादून बेंच ने, कि अब लखनऊ में मौसम बदल चुका है, दोबारा एप्लीकेशन फाइल करिएगा. So I think that is how we can approach it. Sir, thank you so much for your patience. सर मैं एक बार ही गया था. I have went only once, I think 1.5 years ago. जी सर. तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. सर आपको उनके टेबल पे कहानियां बहुत सुनी थी.
आपको सर सौंफ जल्दी मिल गई होगी इनकी टेबल पे। सर वो उनका एक तकिया सलाम था सौंफ का, कि अगर उनको लगता था केस मैं कर दूंगा तो वो सौंफ ऑफर करते थे। अविनाश जी, I am also one of the lucky ones like you who was basically offered that song several times. I think नहीं सर, मैंने कोई सॉन्ग ऑफर नहीं करी। नहीं, मैंने नहीं करी सर, मैं तो करता भी नहीं। उन्हीं के पास रहती थी सौंफ। मुझे ऐसा लगता है कि when he was happy और सब हो जाता था तो वो सौंफ खिला के भेजते थे। मेरे को नहीं खिलाई। चलिए, केस होने से मतलब। सर एक क्वेश्चन और है। सॉरी जस्ट अ स्मॉल अनदर क्वेरी सर, इफ यू वुड लाइक टू प्लीज आंसर। ये जो अपील्स की तो डेट्स अब एक्सटेंड हो ही गई हैं। सपोजिंग मेरे को अगर पेनल्टी का कोई ऑर्डर मई 18 को मिला तो उसकी भी डेट सीआईटी अपील के पास स्टैंड्स ऑटोमेटिक, बिकॉज़ इसी ड्यूरेशन में आ रही है। सर मैं सीआईटी अपील्स की बता देता हूं। अच्छा, वो आपके फाइलिंग की डेट, फाइलिंग के लिए मेरे को जो अपील, आपको कब मिला आपको ऑर्डर? 18 मई को मिला है लेट से। सर 18 मई को पहले वो तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सीआईटी अपील को ऑर्डर देने की पावर ही नहीं है। नहीं किया हुआ है। नहीं, ये जॉइंट कमिश्नर ने पेनल्टी का ऑर्डर दिया है मेरे को, जिसके लिए मेरे को अपील जानना है। कोई बात नहीं सर। सर अब आपको जो 15 मई को जो मिला है, 15 मई से 30 डेज मिलेंगे आपको। ठीक, 15 जून, 15th जून। ठीक, ड्यू डेट बिटवीन दैट पीरियड हो गया, तो आपकी ड्यू डेट जो है वो 30 जून होगी ऑटोमेटिक। ठीक। अच्छा, एक सर जो आपने अभी बोला कि सीआईटी को पावर नहीं है अभी अपील को ऑर्डर पास करने की, क्या हुआ है सर, डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि नो एडवर्स ऑर्डर टू बी पास अगेंस्ट दी एसएससी। अच्छा, तो कोई सीआईटी अपील आपकी अपील में एडवर्स ऑर्डर पास नहीं कर सकता। अच्छा, तो एडवर्स नहीं करेगा तो फेवरेबल करेगा। फेवरेबल करता है, फेवरेबल करेगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझिए ना सर इस बात को। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि कोई ऑर्डर पास ही नहीं हो रहा। हाँ, नहीं, और राइट सर, मेरे ख्याल से देहरादून में भी सीआईटी अपील्स के यहाँ नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये आपका नेशनल ई असेसमेंट सेल ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए और इन्होंने कहा जी डिटेल जमा कराओ, तो देयर वाज अ बिग ह्यू एंड क्राई। यहाँ पे बिजनेस किसी को, वो क्लाइंट को बुला नहीं सकते, किसी के यहाँ जा नहीं सकते, और आप कह रहे हो डिटेल जमा करो फॉर द असेसमेंट। सो एट दैट टाइम दे टुक अ डिसीजन कि भाई किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी तो आपके 143(2) नहीं आ सकता, 142(1) नहीं आ सकता। तो उन्होंने वो कहा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। प्लस कुछ केसेस में ऐसा सुनने में आया कि आपको अपीयरेंस के लिए बुलाया गया और एसएससी नहीं गया तो उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो रहा था। ओके, तो उसके ऊपर भी आया, और इसके ऊपर सर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी कि अगर किसी भी कोर्ट्स में या सेमी जुडिशियल अथॉरिटी में नॉन अपीयरेंस होती है ऑफ द काउंसिल ऑफ द और द अपीलेट और द रिस्पोंडेंट, तो उसको आप जो है एडजॉर्न करोगे केस को, उस केस को आप एडजुडिकेट नहीं कर सकते। तो सर मेरी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सीआईटी अपील में, आईटीआईटी में केस लगा और मैं नहीं पहुंच पाया। अब कोर्ट को थोड़ी पता है कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। हो सकता है मुझको कोरोना हो रखा है, हो सकता है मेरा जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में है, हो सकता है कि मैं इंटरस्टेट रहता हूं और स्टेट ने बॉर्डर सील कर रखे हैं। देयर माइट बी मेनी रीजंस। तो दैट्स व्हाई दे सेड कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर किसी अपील में कोई एसएससी नहीं आता तो आप उसको एडजॉर्न करोगे, एडजुडिकेट नहीं करोगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आईटीआईटी में जितनी भी अपीलें जो ई हियरिंग में हो रही है, उसमें वन ऑफ द प्रोसीजर यही है कि दोनों तरफ का एग्रीमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट भी रेडी हो और अपीलेट भी रेडी हो, एसएससी भी रेडी हो, तो ही वो हियरिंग कर रहे हैं, अदरवाइज वो हियरिंग नहीं कर रहे। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रोविजन हैव कम, और इसकी वजह से सीआईटी अपील अपना जो है असेसमेंट ऑर्डर अभी नहीं कर रहे। बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो हमको पता ही है कि बाकी प्रॉब्लम्स है, बट आप ये मान के चलिए सर, कमिंग मंथ्स सीआईटी अपील विल आल्सो बी ऑनलाइन, और जो अमेंडमेंट इन द लॉ ऑलरेडी आ चुका है। 1st of April 2020 it is effective, where all CIT appeals will be done online and you have to file appeal online. वो appeal filing तो अभी भी हो गई थी। Even submissions is to be filed online, और किस CIT अपील के पास जाएगा ये पता नहीं होगा। तो देहरादून की अपीलें दिल्ली आ सकती है, दिल्ली की अपीलें देहरादून जा सकती है, हमारी दोनों की अपीलें चेन्नई जा सकती है। ये सब कुछ प्रोसेस में है,
और इस पेंडेमिक ने इसको और स्ट्रेंथन किया है। सर वो कह रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट ई हियरिंग से सुन सकती है, जब आईटीएटी ई हियरिंग से आपका जो है केस सुन सकती है, तो सीआईटी अपील क्यों नहीं सुन सकता? जैसे आप और मैं बैठे हैं वैसे सीआईटी अपील साहब बैठे होंगे और हम बैठे होंगे, कर लो हियरिंग। और उसमें भी आई थिंक दे विल गो फॉर 2 प्रोसेस। पहले आप सबमिशन जमा करोगे, अगर अपील साहब को लगता है कि भाई आपके फेवर में है तो वैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, और उनको लगता है कि नहीं एडवर्स है, को हियरिंग देनी है तो अपॉर्चुनिटी अपील दे देंगे। सो ये होने वाला है सर, एंड इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स सिटिंग इन देहरादून। सर अभी आपके लिए क्या होता था, आप सिर्फ देहरादून तक रिस्ट्रिक्टेड होते थे कि देहरादून इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है तो हम करेंगे, नहीं तो दिल्ली के लिए तो 5 घंटे जाने में लगेंगे, 5 घंटे आने में लगेंगे। सर अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने ऑफिस में बैठ के पूरे हिंदुस्तान का काम करो ना सर। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर the professionals in tier 2, tier 3, tier 4 cities, that now they are at par with all the advocates, chartered accountants and other professionals of the metros. सर यू आर एट पार नाउ। सर आज किसी भी कंपनी की रिटर्न फाइल करनी है, पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके ठप्पा लगवा के लाना पड़ता था, और आपके पास कोई मान लीजिए दिल्ली के एसएससी की रिटर्न होती थी तो आप कहते थे यार वहीं से करा ले। अब आप वहीं पे बैठे कर सकते हो ना, और बहुत लोग करते हैं। एंड आई ऑल्सो नो कपल ऑफ पीपल जो अपने होम टाउन में अपने सीएस से काम कराते हैं। सर आप सोचिए अब आने वाले टाइम में अब जो असेसमेंट हो रही है, आपको कोई जरूरत ही नहीं, आप अपने ऑफिस में बैठ के सारी डिटेल्स दे सकते हैं। सिमिलरली कमिंग टाइम्स आप जो है अपना अपील, सीआईटी अपील भी हो जाएगी। आईटीएटी बहुत हद तक हो चुकी है, आईटीएटी तो काफी हद तक जो है ऑलरेडी, अब दे आर आल्सो कमिंग। आईटीएटी में आपको बता देता हूँ, दे आर कमिंग अप विद द ई फाइलिंग सिस्टम आल्सो। वहां पे प्रेसिडेंट साहब जस्टिस पीपी भट्ट साहब ने इसके लिए पूरा एक लेटर भी निकाला है कि आईटीएटी फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है सर, सब कुछ आप वहीं पे बैठे बैठे कर सकते हो, वहीं से हियरिंग करो, वहीं से सब कुछ करो। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन डू इट। बढ़िया मौसम का आनंद लो, बढ़िया हवा, और वहीं से काम करो सर। Right sir, right sir. And also sir, it is very encouraging for the young members specifically कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए और लर्न कर पाए. So I think that is something that is very apparent, and like it is said, necessity is the mother of invention. So ये कोविड ने सिखाई दिया सबको जूम ऐप यूज करना और मीटिंग सेट करना. सीए राजेश गुप्ता जी, आवर सेक्रेटरी, टू प्लीज डिलीवर द फॉर्मल वर्ड ऑफ थैंक्स फॉर आवर स्पीकर टुडे प्लीज. Thank you, Arshit ji. Thank you, Arshit ji. I'm audible? Hello. जी सर, जी सर. Namaskar, sir. नमस्कार सर. Sir, on behalf of the branch of ICAI, I'll thank you very much, CP Seminar, and sparing your valuable time for us and giving us enlightening talk, and that too within seconds. You were amazing with your dates and everything. Thank you very much, sir, for this, and we look forward for backup session also once amendments are introduced into the ordinance. Definitely sir, definitely we will again interact. So thank you Dehradun branch for inviting me, and thank you Rajat bhai जिन्होंने मेरे को कॉल किया और इनवाइट किया. So thank you all of you for the. I once again thank you sir. Stay safe, stay home. I hope आपके यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होगा, but फिर भी take all precautions and stay safe, stay home. Definitely sir. हमने आपको बैकअप सेशन के लिए बुक कर लिया है. Thank you so much. Thank you all members. Please enjoy tea at your place from our behalf. Thank you. वाली चाय भेज दो सर, मेरी चाय मेरे को भेज दो. Sir, due right sir. Thank you so much. Thank you all the members for attending. Thank you for your time. Thank you sir. सर हमारे उसमें क्या हुआ, हमारी एक मीटिंग होती थी, तो one person has to host that particular meeting every on a rotation basis. तो हमारी SRCC alumni association की मीटिंग है. So what happened is one of the hosts have given a list of things to everybody as an along with the agenda of the meeting. कि जो भी मीटिंग में आएगा एक चाय लेके आएगा, 2 बिस्कुट लेके आएगा, ये लेके आएगा, और when he will say that okay let's have tea, so everybody should have the tea. Very nice. I think that's a good input for our next webinar, Vimal sir. Let's try and incorporate something. Take a note of this. Also. Right, but it is really good that everybody is enjoying the tea also, but prepared by themselves. Right sir, right sir. Okay sir, thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you Pulkit, sir. thank you Arvind ji, thank you all members, thank you for attending. Thank you Vimal sir, thank you Rajesh. Thank you.